what is the usefulness of this software is, so it is actually a very good and strong software for the any kind of image processing things. So we will going to learn various things over here. So like that, we did only one kind of atmospheric correction processing ArcGIS Pro, which I just showed you yesterday. But now today we are going to see at least two different kind of techniques. One is obviously that is a Tokyo correction process. We also call it here as a radiometric correction process. And there is one more process we're going to learn, that is a quick atmospheric correction process. And maybe tomorrow we're going to learn that there is a flush atmospheric correction process. Okay, so there is a various kind of atmospheric correction process will be there in ENVI, which we are applying for a different kind of satellite images. Okay, so it depends on your requirements. So what kind of data you are actually using, and over that what kind of you can do the atmospheric correction process. Okay, so usually this is not required over the radar images, because radar there is another kind of problem, that is a kind of a noise signal problem. So those kind of things we also going to learn the processing of the Starscape, that is filtering technique. So that is a different thing. And here the atmospheric corrections, basically we are going to use our basically over the multispectral data, hyperspectral data. So whatever we are actually using, so on that particular purpose we are actually doing this kind of corrections. Even we have some specific radiometric correction. So in the radiometric corrections, two things we are considering. One is radiance calculations, another one is reflectance calculations. Okay, so these two things also we will going to learn about the few data sets which is already given here. So over that also we can run. Okay, we get an idea. And obviously you can run this type of technique over all the available data like Landsat and all. But here we will not only use the Landsat and here we will use so many other high resolution satellite images also. Okay, so in that satellite image we will going to learn the authentications procedure also. Okay, and there is, we also discussed yesterday some image targeting things like indices and all. So here also we are going to see there is a kind of workflow things will be there. Okay, so workflow is kind make your work so easier. Then we're going to see what is the concept of workflow. Okay, like वहाँ पे हम लोग जो model builder कर रहे थे, so model builder we are actually preparing by ourselves. Okay, to get some particular results. Okay, यहाँ पे क्या होता है workflow में you will get directly that informations. Okay, इसका जो मॉडल है खुद से बना के रख देते हैं. ओके, सपोज वन एग्जांपल चेंज डायरेक्शन. पहले चेंज डायरेक्शन करने के लिए हम लोग को बहुत सारा स्टेप्स पे गुजरना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे चेंज डायरेक्शन वर्कफ्लो डायरेक्टली दिया हुआ है. सो यू नीड टू गिव ओनली द इनपुट of two different depths data and directly will get output of the change pixels. Okay, so ऐसे बहुत सारा workflow का model already predefined है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं workflow. Even you can create a model builder here also. यहाँ पे भी model builder का options है. Okay, anyway, so now we will see this first chapter which we're going to discuss, that is the tool descriptions. Okay, so whatever the tools is there in this view you just see here. Okay, so that we are going to see first. Okay, why? Because whenever you are going to do any kind of processing over any satellite images, okay, that will control by these tools. Okay, so this first chapter is totally getting an idea about a different tool which will be visible here. Okay, even for each and every tools, like for the pixel editor 2 you can able to learn about contrast. Okay, and you can see there is a stretching. Okay, so this is, you may heard about in image processing, we already read in our subject like digital image processing. So digital image processing, there is few specific tools will be there, stretching, histogrammaticulations. Okay, so all these tools will be there here. Okay, so once you will take any image here, okay, so it will get in its original radiometry. So you will not get a clear image. So you have to do some kind of digital stretching techniques to get a clear view of your image. Okay, so ये मतलब प्रो में जब हम लोग mtl.cx फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर रहे थे, तो that time it will take care of everything. But यहाँ पे you have to do manually after selecting mtl.txt file also. Okay, तो वो क्या है, we will going to discuss all those things, then it will come to. So first thing, that is this view. Okay, so इसको जैसे यहाँ पे, so we will take it as a menu bar. Okay, so it will be some specific menu tools will be there, so which will be there like file, edit, display,
Okay, placement, and then view, server and help. Okay, so these are the few tools will be there from here. इसके नीचे जो होता है that is इसको बोलते हैं हम लोग टूल बार. Okay, ये है मेनू बार and this is the toolbar. So this is some ये toolbar अभी deactivated है. So it will activate it when you launch some imagery over here. Okay, so then only it will activate. But few are sensitive with some particular specific data. Okay, तो उसके हिसाब से वो activate होता है. So now इसको जो हम लोग बोलते हैं that is our display window. मतलब whatever analysis we will going to start, we will do it here. ये थोड़ा सा नया एनवी का है. If you already worked over classic viewer, we have two window. जैसे जब when we are actually studying and doing our research, that time we used to work on this window. This is also another pattern. जो just see here, this is we called as a classic viewer. Okay, ये classic viewer का होता है. So just simply you click on and open. So classic viewer is just a single bar. Okay, so that is classic viewer and this is the present viewer. See, this is the classic viewer which is just open. And what is the classic viewer? How it is looking like? Just see a single, just a single, see this. So this is a classic one. Okay, so means this is just like just maybe हम लोगों ने उस दिन देखा ना एक क्लासिक व्यूअर था और एक आपका मैप व्यूअर था और मतलब न्यू मैप व्यूअर था. So same इसका भी that is the classic viewer and this is the this one. अब now NV में कुछ specific work which is good in this view. Okay, इस कौन सा वर्क है? जैसे स्पेक्ट्रल एनालिसिस. अब अगर कोई भी हाइपर स्पेक्ट्रल का काम करोगे so then we will always recommend to work on this particular spectrum. ये किसी का कंफर्टेबल की बात भी होता है but we used to comfortable on this. इसका जो व्यूइंग टेक्निक होता है जो हम लोग स्पेक्ट्रल मैचिंग करते हैं तो उसके लिए दिस इज कंफर्टेबल. ओके, बट इफ यू वांट टू यूज सम हियर सो दैट आल्सो यू कैन. मैं इसको ऑफ कर देता हूं. वी विल ओपन दिस वन ओनली. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल लेयर मैनेजर. ये इसका ये थोड़ा सा आर्कजेएस जैसा बना के रखा है. ठीक है, सो दिस इज सेम लाइक लेयर मैनेजर. यू कैन ऑपरेट द लेयर. जो वहां पे था तो यू डोंट हैव एनी लेयर मैनेजर, तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा इमेज ओपन हुआ है. If you are open a multiple image also, every time you have to open a data manager there and then you will get an idea. But यहाँ पे क्या है कि layer manager में you can able to see all the setting. यहाँ पे दो चीज से कंट्रोल होता है. एक होता है आपका layer manager, दूसरा होता है आपका data manager. ओके, सो लेयर मैनेजर से आप कोई भी इमेज या सपोज आपने पहले क्या है कि फाइल में जाके जब मैं यहाँ पे डेटा ओपन करूंगा सो इट विल फर्स्ट ओपन इन योर डेटा मैनेजर. ठीक है, अब डेटा मैनेजर से फिर आपको लोड करना होता है इमेज को. So that you can make it in a single view, that you can make it as a multispectral view. Like, okay, so that you have to select in data manager and it will going to replicate on your display view as well as your layer manager. ठीक है, तो लेयर मैनेजर में जो भी मैप आप ओपन करोगे तो उसका आपको ये दिखागा ही दिखेगा. ठीक है, लेकिन मैं अगर कोई भी इमेज को लेयर मैनेजर से रिमूव करूंगा so it will not remove in my data manager, it will be always stay in my data manager. तो कोई भी मैप्स को अगर मुझे परमानेंटली रिमूव करना है एनवी के अंदर से जो मैंने खोला है उसको बंद करना है सो यू हैव टू रिमूव फ्रॉम डेटा मैनेजर नॉट फ्रॉम द लेयर मैनेजर. ओके, तो ये किस लिए होता है? तो नाउ व्हेन वी गोइंग टू सी व्हेनेवर वी डील विद द वेरियस बैंड्स सो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि इतना सारा बैंड में कौन सा मेरा मींस योर मेजर आउटपुट. अभी एक के बाद आउटपुट वी विल गोइंग टू जनरेट देन वी विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज वी कॉल एज अ लेयर मैनेजर, जिससे हमको पता चलता है. और नीचे एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार. Okay, and that processing bar. This is two things we do. One is this status bar and this is a processing bar. Processing bar is very important because अभी भी कोई भी जब हम लोग कुछ बड़ा मॉडल रन करेंगे या कुछ भी प्रोसेस करेंगे so that it will show you here in a blue. Okay, so by the time it will not finish the blue mark totally finished. Okay, so that means this process is actually running. Okay, so you should not close the system and all. So in few data sets it will take so much time. Earlier जो पहले का हम एनवी में काम करते थे तो उसको लगा के हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा इट इज टेकिंग 2 days 3 days फॉर गेटिंग अ फुल कंप्यूटेशन ऑफ द रनिंग. अभी चलो अभी तो सिस्टम भी फास्ट हो गया है सो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम है. अब इसके बाद नाउ एनवी सर्वर भी आ गया है तो सर्वर में भी क्लाउड ऑप्शंस लेके यू कैन रन सो उसका प्रोसेसिंग और भी ज्यादा जल्दी हो जाता है. ओके, सो दैट इज द मींस द डेवलपमेंट ऑफ द एनवी सॉफ्टवेयर. नाउ we will see this is the basics idea about this particular window and how it is actually operating. Now we will see the first thing over here, that is the preference.
Okay, so we will going to create a preference. What is this meaning of the preference? Preference may means whatever data sets you have. Okay, so you should put in a one location. Okay, so whenever I'm just going to click file and open, so automatically it will take me to that particular location. Okay, or इसका जो output folder होगा, so that also we will identifying there only in preference only. तो जितना भी मेरा आउटपुट जनरेट होगा सब उसी फोल्डर में जाके स्टोर होगा. ओके, सो दैट यू हैव टू डू इट फास्ट. ओके, सो कैसे करते हैं उसको? सो इफ यू गो इन अ फाइल, तो मैं फाइल में जाके यहाँ पे यू हैव गेट दिस प्रेफरेंस विंडो. ओके, सो अंडर द प्रेफरेंस विंडो you have various options which you will get informations about some particular sensor if you just open also. Okay, so but here our major focus is this one. Okay, that is directory. This is very important. That means where is my data? Suppose now jo abhi training mein de jaunga, so that data sets will be here. Okay, so see, this is the NV out under this. So मैंने क्या किया है, इसको पहले से सिलेक्ट करके ओके करके रखा है. एंड देन आउटपुट डायरेक्टरी मैंने इसको सी ड्राइव में फिक्स करके रखा है, एक 7 स्टेप का ट्रेनिंग डायरेक्टरी है. सो टेस्ट सब स्टेप. ठीक है, तो मैंने एक करके रखा है. ओके, सो इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं अगर कैंसिल कर दिया देन इट विल नॉट टेक. ओके, सो यू हैव टू क्लिक ओके, देन ओनली आपका वो दोनों जो डायरेक्टरी है वो कंफर्म हो. कि बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं लेकिन ऊपर से उसको क्रॉस कर दिया. सपोज आपने क्रॉस कर दिया तो आपका डायरेक्टरी सेव नहीं होगा. ठीक है, आपका डायरेक्टरी तभी सेव होगा जब नीचे से आप ओके करो. बट ये इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं है, बट दिस इज हैपन. ओके, नाउ सपोज your preference is done. Okay, so now the next thing we're going to learn, that is the opening and displaying the any image. तो एक इमेज को कैसे यहाँ पे खोलते हैं, उसका खोलने का टेक्निक कैसा है. ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट वे में, अभी तो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी बेसिक्स. ओके, तो लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीपल इमेज को will going to process in a single image, so that we will going to see. So now you have to understand how we'll controlling the display in NV. Okay, so usually NV में मैं अगर कोई फाइल ओपन करना चाहूंगा, so see now अगर मैं अभी now I'm just either I can go for file and open, or I just simply click on this open, so automatically it will take me to that particular location only. Okay, so जो मेरा NV out course data है, so उसके अंदर NV, so these are the my all data sets. मैं by default इसको select करके रखता हूँ. Okay, so now it is coming. So suppose यहाँ पे बोला है कि first जो data है, so that will we have to open from there is some name of that particular folder. Okay, this is Suchi Russia. Okay, so this one is this one. Suchi Russia. Yeah, this one. Okay, so this is one a Landsat image. Okay, Landsat 8. We'll start with that. So let's see the difference. कल के साथ आज की इसका difference क्या है. ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे भी सेम फाइल को वो रीड करता है. ओके, सो जस्ट सी कहाँ पे mtl.txt फाइल. ओके, सो दिस आर द फाइल. ओके, सो लेट्स सी. ओके, so it is looking so dark. Okay, now you feel that nothing is there, but यहाँ पे you can able to see there is something is coming. That because it is not fully stretched here. Okay, so Pro क्या करता है, उसको by default हम लोग जो linear stretch, मतलब usually जो जब image capture होता है उसका एक some elevation angles के हिसाब से it is actually capturing your image. So that's why during that time if you are not doing any kind of linear stretching, so आपका जो सारे concentration of वैल्यू जो होता है वो एक जगह पे स्टोर हो जाता है. तो इसीलिए आपका इमेज कई जगह पे ब्राइट होता है, कई जगह पे थोड़ा ब्लैक होता है. सो इसीलिए अभी जो मैंने एक जगह ये थोड़ा जूम दे दिया है, आप अगर इसको ऐसे करोगे सो यू विल गेट फ्यू व्यू. अब क्यों ऐसा हुआ, व्हाई इट इज कमिंग, बिकॉज यहाँ पे स्नो कवर है. तो स्नो कवर का रिफ्लेक्टिंग वैल्यू इतना ही हाई होता है तो सारे जो कंसंट्रेटेड वैल्यू होता है तो उसके ऊपर ही आ जाता है. दैट बिकॉज द रीजन यू विल नॉट एबल टू सी अदर साइड इन अ वेरी क्लियर वे. इसको ओवरकम करने के लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचनिंग, लीनियर स्ट्रेचनिंग. हम लोग इसीलिए लीनियर स्ट्रेचनिंग करते हैं. whenever you are stretching some data, you are stretching between 0 to 2, right? तो आपका जो पूरा पिक्सल वैल्यू है इट इज linearly stretched equally, तभी you will get a good view. तो लीनियर स्ट्रेचनिंग का आपने पढ़ा होगा, बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेचनिंग करते हैं हम लोग.
1% स्ट्रेचनिंग, 2% स्ट्रेचनिंग, सो मेनी अदर स्ट्रेचनिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये स्ट्रेचनिंग टेक्निक अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अभी ओवरव्यू देख लेंगे। तो जो अभी मैंने इसको टूल यूज किया है, जो पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था आपको, जब मैं यहाँ पे जो टूल यूज कर, दैट इज जूम टू एक्सटेंड। ओके, यहाँ पे जूम टू एक्सटेंड इज दिस टूल। यहाँ पे और भी कुछ टूल है, तो यस आपको आप लोग को एक बार देखने के लिए बोला है कि कौन सा टूल कैसा है। ठीक है, सो फर्स्ट दिस इज द -1, दिस इज द +1, और ये कौन सा है, ये आपको बॉक्स करके कोई भी एक पर्टिकुलर जोन को आप जूम आउट कर सकते हो। सो दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर। सो यू हैव रोटेट, दिस इज ऑन फ्लाई। ऑन फ्लाई कैसा है दिखाता हूँ। ऑन फ्लाई इफ यू क्लिक ओवर इट, सो जहां पे आप क्लिक करोगे तो वो ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, जो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सो दे कैन कंट्रोल दिस वेरी गुड। सो नाउ दिस इज द नॉर्मल पैनिंग। सो नॉर्मल पैनिंग, or you can take it, this is the pixel value. If you want to see some particular pixel value in particular locations, so then you can go for this one. We will going to work so many things over it. Okay, this is a very important tool in Vim. Okay, यहाँ पे और भी कुछ tool है, so that will come slowly. Okay, so first thing which we will going to learn here, that is for the data manager. Okay, so what is the data manager? So मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब मैं mtl.txt फाइल ओपन करता हूँ, so it will show me so many bands, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से पता चलेगा, अभी यहाँ पे तो मुझे 3 ही बैंड दिख रहा है। Okay, so that means there is some place where all the bands will be visible, so that is your data manager. This is the data. Okay, so data manager पे आप क्लिक करोगे, I open only single satellite ना, but you just see how many bands. Okay, कल जब मैं प्रो में किया था, सो प्रो में क्या कितना ओपन हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट 8 वन ओपन इन प्रो। ठीक है, क्योंकि उसका रूल यही है कि व्हाट एवर विल बी सेम स्पेशल रेजोल्यूशन, वो उसको ही सिर्फ डिटेक्ट करते हैं। बट हियर इट इज ओपनिंग ऑल द बैंड। अगर आप इंटेलेक्ट फेस्टिवल को सिलेक्ट करते हो, इट इज include the thermal band also, include the cirrus band also, all of them. Even though cirrus band is also kind of same resolution of this 30-meter spatial resolutions. Okay, but this is a specific band. Okay, so that is coastal resolution. Okay, fine. Say this one coastal also. This specific band is very useful for the cloud removal. जो मैं कल एक cloud removal के बारे में बोल रहा था, तो pro में एक special band मतलब टेक्निक होता है जिससे ये cirrus band को यूज करके you can remove the cloud cover. ओके, तो वो एक टेक्निक होता है, इस पे भी कर सकते हैं क्लाउड कवर रिमूवल, बट वही है, सारे में सेम ही है, थंब रूल सेम ही है कि ज्यादा क्लाउड होगा तो इट विल नॉट अपीयर। ओके, ओनली फ्यू केसेस यू कैन डू दिस थिंग। इन नाउ you have the thermal bands also, but now the process is here you can remove, this is called data management window। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको बोलते हैं कोलैप्स बटन। सो अगर इसको कोलैप्स ऑन करते हो तो you can able to see sensor specific data. So this is, you understand, this means Landsat is your satellite. Under Landsat we have several sensors. Okay, so one is multispectral, next one is panchromatic, cirrus, thermal, and QE is a quality assured product. Okay, so that is depending on your product quality. So basically you have 3 sensors: multispectral sensors, panchromatic sensors, and thermal sensors. Okay, इसके साथ एक cirrus एक नया, that is only detecting for that particular cloud band, उसको select करने के लिए ये band दिया जाता है। So इस पे क्या होता है, sensor specific you can able to see, जो कोई और सॉफ्टवेयर में देखना is very difficult। मतलब प्रो में ये नहीं दिखा, प्रो में सिर्फ Landsat खुले तो इंटेलिजेंस फील्ड है, so you will going to see only that only one sensor, that is multispectral sensor। ठीक है, लेकिन यहाँ पे you can process, प्रो में भी मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, थर्मल बैंड्स को मैं वहां पे भी प्रोसेस कर सकता हूँ, then you have to go for some certain form। Okay, so you have to open single that particular band। Okay, वहाँ पे थर्मल बैंड को आपको सिंगल ओपन करके देन प्रोसेस करना पड़ता है। टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता उसमें इलास्टिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू कैन डू इट वेरी नाइसली हियर आल्सो, यू कैन, यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज द, ये सॉफ्टवेयर तो इसके लिए स्पेसिफिक है, मतलब यू कैन डू एनी काइंड ऑफ परसेंटेज। ओके, नाउ यहाँ पे जो टूल है देखो, ये तो मैं कोलैप्स दिखाया, दूसरा क्या है कि एक्सपैंड। सो यू वांट टू सी ऑल द sensors band, each and every band, then you can able to see। अब ये भी यहाँ पे भी, yeah, this is very good when you selecting the mtl.txt file,
you can see all the bands by name you will get. Okay, other sensors you will not get this. Okay, you have to go for the manual process. Like अगर आपने कोई बैंड कोई सैटेलाइट लिया है, ठीक है, तो उसका बैंड 1 2 3 4 क्या है, यू हैव टू नो. तो उसके क्या करते हैं कि जब हम लोग उसका स्टैकिंग करते हैं तो उसका जो नोड कोड नेम देते हैं ना हर एक बैंड का, सो बैंड 1 SWIR. ओके, फिर सैटेलाइट का नाम देते हैं, फिर डेट और एक्विजिशन डेट, ऐसे करके हम लोग कोई भी सैटेलाइट का स्टैकिंग करके उसका नाम देते हैं. तो हम लोग क्या कर पाते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट. वो सैटेलाइट क्या है, एक्विजिशन डेट क्या है. तो कोई भी आप जब काम करोगे, सो यू हैव टू गिव अ नेम समथिंग लाइक दैट, जब मैनुअली आप स्टैक करो. ठीक है, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बट यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेशन होता है. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, दैट इज दिस टू ऑप्शंस विल बी देयर. ओके, वन इज क्लियर ऑल फाइल एंड क्लोज फाइल. इसमें क्या है कि मुझे सपोज अभी ये बैंड नहीं चाहिए, सो मैं इस बैंड को यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ. मुझे थर्मल बैंड्स नहीं चाहिए, आई कैन क्लोज दिस बैंड. ओके, तो जो बैंड मुझे नहीं चाहिए, आई कैन क्लोज इट फ्रॉम. दैट इज द process. And if I want to close everything, I can go for this. Next one is this one. This is also very important. That is called ArcGIS. Okay, ArcMap. लेकिन इसको करने के लिए you have to open this map in a 64 bit. यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होता है एनवी में. सी 64 बिट 32 बिट. ओके, चाहे थोड़ा जल्दी आ गया क्या? अच्छा, तो ये जो 64 बिट और 24 बिट है, जो 64 बिट वाला है वो क्या करता है, ArcGIS को सपोर्ट करता है. ठीक है, लेकिन अगर ये किस लिए यूज होता है, सपोज आपने कोई काम यहाँ पे एनालिसिस किया है एंड इमीडिएटली वांट टू टेक दैट इंफॉर्मेशन इनटू ArcMap. तो पहले हम लोग क्या करते थे, इसको एनवी से ArcGIS जो फाइल फॉर्मेट है उस पर सेव करते थे. यहाँ पे देखो सेव एज ऑप्शन है ना, तो पहले हम लोग ऐसे इसको सेव एज करते थे, सेव एज. ओके, so yeah, ArcView raster. Okay, तो पहले हम लोग इस पे सेव करते थे, then we used to take it in ArcGIS. ठीक है, लेकिन अभी इस पे क्या है कि अगर आपका पास ArcGIS है, तो अगर आपको इस टूल से डायरेक्टली जो मैप अभी खुला है उसको डायरेक्टली ओपन करना है, तो रूल इज पहले आपको ArcGIS को ओपन कर लेना है. ठीक है, ArcGIS को सिंपली ब्लैंक ओपन करना है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने खोला है उसको 64 बिट में ओपन करना है एनवी में. फिर उसके बाद आप इसको क्लिक कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करके ArcGIS में जो आपने ArcGIS विंडो खोला है उस पर आ जाएगा. सो दैट विल बी द प्रोसेस. ओके, तो ये आप कोई भी डेटा को ArcGIS में ले जा सकते हैं. दैट इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द एनवी एंड ArcGIS. ओके, सो नाउ this is the informations about your you can say the band. Okay, so that is data manager. So data manager में I already told about all these particular things. Now कोई भी एक सिंगल बैंड को अगर ओपन करना है और we have to open मल्टीस्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशंस. लाइक यहाँ पे जो अभी ओपन है ना, ये ट्रू कलर में ही ओपन है. दिस इज ओपन इन ट्रू कलर बट यू आर नॉट एबल टू सी. तो इसको अगर मुझे क्लियर इमेज करना है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल गोइंग टू डू, दैट इज स्ट्रेचनिंग. तो स्ट्रेचनिंग कहाँ से होता है, यहाँ से होता है. सो यू हैव सो मेनी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग. सो सपोज मैं आई जस्ट अप्लाइड हियर 5% linear. Once you did the stretching, you will get the clear image of that. Okay, so एनवी में डायरेक्टली आपको क्लियर इमेज नहीं आता है. ठीक है, तो इसको आपको स्ट्रेचनिंग करना होगा. कोई भी इमेज आप यहाँ पे ओपन करोगे, सो दैट इट विल टेक फ्रॉम इट इज रॉ डेटा, इट विल टेक एंड इट विल ओपन विदाउट स्ट्रेचनिंग योर इमेज. और जो प्रो में होता है क्या है, वो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर द स्ट्रेचनिंग टेक्निक. तो आपको स्ट्रेचनिंग करने की जरूरत नहीं है, बट वहां पे भी स्ट्रेचनिंग का बहुत सारा अदर ऑप्शन है जो मैंने कल दिखाया था, परसेंटेज क्लिपिंग, ओके, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेचनिंग यू कैन डू अगेन ओवर योर इमेज. बट बाय डिफॉल्ट जो लीनियर स्ट्रेचनिंग होता है वो ऑलरेडी करके ही आता है, यहाँ पे नहीं आता है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है. नाउ दिस इज आई ओपनड image in true color format, na? So this is in true color. You just see here red, green, blue. Okay, so what I want to open it in a suppose false color composition. तो मैं कैसे false color composition में ओपन करूँ? यहाँ पे false color में ओपन करने का बहुत सारा ऑप्शन है. If you want to go manually,
तो मैनुअली आप यहाँ से बैंड में जाके, ये जो बैंड सिलेक्शन प्रोसेस है इस पे जाके आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इंफ्रारेड, रेड एंड ग्रीन. ओके, एंड देन क्लिक ऑन लोड डेटा. सी हियर, यू कैन एबल टू सी. ओके, बट अगेन आपको स्ट्रेच नहीं करना. ओके, सो यू कैन गो विथ दिस linear 5%. Okay, so now you will get a clear view of this. No, ये जो अभी हमने बनाया है, so that is by using manual. If you want, here automation भी काम करता है. जैसे वहाँ पे मैं एक pro में एक दिखा रहा था ना कि appearance में जाके you just need to select the band color infrared और true color. वहाँ पे selection था ना, bathymetry कल मैं दिखा रहा था ना, यहाँ पे भी है. यहाँ पे कैसे करते हैं? Just right click कीजिए, इसको remove कर देता हूँ मैं. Okay. So I will open the same thing again in true color. Suppose मैं यहाँ पे select करूँगा, right click करूँगा, यहाँ पे देखिए true color में already है. So I want it in color infrared. Suppose. Okay. So simply click on color infrared. That's all. See. Okay. Direct option. But ये तभी read करता है जब mtl.txt file जैसे file it is automatically readable. Then only this software is doing this process. Otherwise आपको manually करना है. Manual process मैंने इसलिए ठीक है, मैनुअल प्रोसेस पे मैक्सिमम हम लोग मैनुअल प्रोसेस पे ही करते हैं. बट कुछ कुछ ऐसा फाइल अगर मतलब अगर लैंडसर सेंटिनल पे करते हैं तो इट विल वर्क फाइन लाइक दिस. ओके, सो नाउ ये हुआ. सो नाउ वन मोर थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी, दैट इज द स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ सम स्पेसिफिक बैंड. ये कहां से बोला है? ओपन करने के लिए. ओके, सो इफ यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर image. Okay, so here you will get this information. Suppose the spectral information you want to see. Okay, कोई भी सैटेलाइट इमेज पे आप डबल क्लिक करोगे जो मल्टी स्पेक्ट्रल वाला फाइल है तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो इस पे आपको क्या रहता है कि बैंड स्पेसिफिक जो स्पेक्ट्रल रेंज है, सो दैट यू विल गेट. ओके, ये आपको प्रो में नहीं मिलता. ये इसका एडवांटेज. ठीक है, ये कभी एक्चुअली चलो ये mtel.txt फाइल है, चलो ठीक है, कोई अभी यहाँ पे 6-7 बैंड है तो ठीक है. लेकिन अगर 10-15 बैंड होता है देन यू विल बी कंफ्यूज्ड. तो उस टाइम हम लोग को बार बार ये चीज देखना पड़ता है कौन सा बैंड कौन सा है. ओके, बाय नेम आ रहा है देन इट्स फाइन. ओके, बट अगर बाय नेम नहीं आ रहा है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच बैंड इज व्हिच. क्योंकि कोई भी हम लोग को प्रोसेसिंग करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए बैंड इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. अगर इफ यू आर नॉट सिलेक्टिंग द राइट बैंड, यू विल रिजल्ट्स विल नॉट कम राइट. ओके, so that's why this band informations you can check from here. Now अभी हम लोग जो देखेंगे ये that is the creating a new view. यहाँ पे क्या है कि now I am only dealing with the single view. So like आप जिस प्रोग्राम में दिखाया कि डबल व्यू करके हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं. We can make it a double view here also. Okay, तो डबल व्यू कैसे करते हैं? Usually यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है, you have seen lot of view options. Okay, so whatever view you want you can configure from here. Suppose मैं एक व्यू को यहाँ से और रिमूव कर दूं. Now I make it as a vertical. Okay, तो जो व्यू में सिलेक्टेड है that is your actually selected. And now if I just want to open this particular view, just so देखिए that now this will selected as a blue. और now I am to upload another suppose true color composite here, so I can do it. Okay, so like this, suppose this is my data manager. Okay, so यहाँ पे मैं suppose इसको open करूँगा color infrared. Just see here. Okay, so if you want to make it 5% linear and stretch. Okay. So if you want to stretch this one, then you can go for this one. Okay, so now we can control these two together also. Like कल जो जियो लिंकिंग करते हैं, you can do the geo linking here also. यहाँ पे जियो लिंकिंग कैसे करते हैं? You have options here, view, link view. So link view में you can link all, you can make it, and you can take this particular pixel and see here. If I zoom a particular place, so automatically it will zoom to another place. Okay. So
सो ये पिक्सल टू पिक्सल मैचिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, सपोज यू वांट टू क्या होता है कि सपोज यू आर कैलकुलेटिंग एनीथिंग लाइक रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट किया था ना कल हम लोगों ने, सो रिफ्लेक्टेंस यू कैन कैलकुलेट मैनुअली आल्सो, और रेडियंस आप कैलकुलेट कर रहे हो तो रेडियंस कैलकुलेशन मैनुअल, मतलब यहाँ पे क्या है कि कल जो मैंने आपको दिखाया था टीओए करेक्शन, सो टीओए करेक्शन सही है या गलत है आपको कैसे पता? मैंने तो दिखा दिया, रन करके मैंने दिखा दिया कि दिस इज द रिजल्ट, आपको क्वालिटी भी अच्छा लगा, लेकिन यू हैव टू वैलिडेट एनी रिजल्ट्स व्हाट एवर यू आर डूइंग, सो दैट यू हैव टू वैलिडेट। ये वैलिडेशन करने का प्रोसेस इज गुड इट हियर, वहां पे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटर है। कैसे करते हैं? सपोज मैं कल दिखाया था जो मतलब सपोज जो रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेटेड, ओके, तो रिफ्लेक्टेंस का सपोज a प्लस बी, ओके, डिवाइडेड बाय समथिंग सम वैल्यू, सपोज आई एम टेलिंग, सो a प्लस बी, सपोज दिस इज योर सम ऑफ सम elevation एंगल और सम गेन एंड बायस, तो उसको आपको मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे जो मैं ओपन करूंगा, सो दैट विल बी माय रॉ इमेज, और इसके बाद यहाँ पे जो ओपन करूंगा दैट विल बी माय सपोज आफ्टर रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेटिंग इमेज। सिर्फ मैं आप एग्जांपल फॉर द रिफ्लेक्टेंस, रेडियंस के लिए भी करते थे, रेडियंस के लिए मैं एक्चुअली ज्यादा करते थे, ओके, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ रेडियंस सपोज। अब रेडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सरफेस टेम्परेचर, अगर सरफेस टेम्परेचर करोगे देन रेडियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडियंस में क्या होता है कि आपने जब फॉर्मूला यहाँ पे डन किया, यहाँ पे डायरेक्ट रेडियंस टूल है, देखना मैं जब रेडियोमेट्रिक करेक्शन करूंगा इट विल डायरेक्टली रन, बट रेडियोमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस इज सेंसर स्पेसिफिक, मतलब सेंसर टू सेंसर वो वैरी करता है, ठीक है। तो आपको सेंसर्स भी सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट फाइल दे रहे हो देन ऑटोमेटिकली इट विल रीड, नहीं तो आपको सेंसर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्या होता है, जो फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है, मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेंस का एक वैल्यू आएगा, तो पिक्सल लेवल पे आपको जूम इन करना है, मतलब टू जूम इन लाइक दिस, okay, so now it will show you suppose this pixel value, okay, so this is pixel value। अब ये रिफ्लेक्टेंस का पहले का वैल्यू आएगा, ठीक है, अब रिफ्लेक्टेंस का बाद का जो वैल्यू होगा वो आपको मैनुअली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला को डाल, एंड देन इफ दिस वैल्यू इज कमिंग राइट, सेम जो आपका यहाँ पे मतलब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो फॉर्मूला में, इफ इट इज मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू, देन द प्रोसेस व्हिच यू जस्ट रन दैट इज परफेक्टली डन। So this is we call as a validation process। तो ये validation process के लिए this technique is very important, क्योंकि आप कोई भी चीज रन कर रहे हो, so you have to check the pixel value, pixel value ठीक आ रहा है या गलत है। pixel value अगर उल्टा सीधा आ गया, ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा हूँ, रेडियंस वैल्यू अगर मेरा 15 16 18 आ रहा है, सो दैट मींस माय लाइन सेट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज एक्चुअली रॉन्ग वैल्यू, मैक्सिमम रेडियंस वैल्यू विल कम बिटवीन 8 to 40, मैक्सिमम 40, 18 19 आएगा तो वो रॉन्ग ही आएगा। तो वो मेरे को आइडिया भी करना होता है, तब मैं पिक्सल वैल्यू को चेक करके आइडिया, ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। तो यही चीज यहाँ पे बोला है कि हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क विथ दिस टू व्यूअर विंडो, ओके। सो नाउ आई जस्ट मेक इट इन वन विंडो, ओके। सो कोई भी एक विंडो आप जो भी सिलेक्टेड होगा, सो दैट विल कम एज अ वन विंडो, ओके। सो now few more things which we will going to learn, that is we will going to learn about the swiping, blending, flicking, this tool। So this tool is another very important tool when we are comparing one image to another image, okay। आप कोई चेंज डायरेक्शन देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो जैसे हम लोग, मैंने उस टाइम कल बोल रहा था ना कि हम लोग मैंगो प्लांटेशन करते थे, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासेस, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासेस हम लोग इस पे भी यूज करते हैं, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कॉग्निशन बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उस पे भी हम ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन करते थे, इस पे भी ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड देन वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग दिस रिजल्ट्स। तो इस रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूल, उसको बोलते हैं ब्लिंड। अब ये ब्लिंड टूल कैसे यूज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सपोज और एक ओपन करता हूँ कलर एडिटर, ओके, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, आप थोड़ा सुनिए। Suppose I just want to see the down this one, this two color composite कैसा है मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, फर्स्ट इज दिस वन, पोर्ट्रल। अब पोर्ट्रल क्या होता है, ओके, सो पोर्ट्रल में क्या होगा, आपका ये बॉक्स खुल जाएगा
and you can compare that particular box. Okay, तो मैं जहां ले जाऊंगा अपने रिजल्ट्स को चेक करता हूँ. सपोज आपके पास एक कोई बिफोर एंड आफ्टर क्लासिफाइड इमेज है. ओके, और आपने कोई क्लासिफिकेशन किया है, कोई सपोज जैसे मैं बोल रहा था, हम लोग क्या करते थे, वी आर एक्चुअली क्लासिफाइड सपोज मैंगो प्लांटेशंस. तो अभी नीचे का मुझे मेरा क्या रहता था, नीचे मेरा मल्टीस्पेक्ट्रल का इमेज रहता था, ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेज जो मेरे पास है वो रहता था, और ये क्लासिफाइड इमेज हम लोग ऊपर रहता. हम लोग ये पोर्टल को डाल के वी विल जस्ट चेक द कैनोपी जो हुआ है दैट इज मैच्ड ऑन. Okay, so this is the tool which we are actually using for that. Okay, so now this is the one tool. Next is Flickr. So this is we called as a Blind, sorry, not Blind. This is actually your portal. Now this one is your Blind. So Blind क्या होता है? Slowly change करेगा. Slowly एक बार आपका इस पे चेंज होगा, एक बार आपका इसमें. So this we call as a Blind. Okay. So next is your Flickr. Blind में थोड़ा स्लो होता है, Flickr में वो फास्ट होता है. Flickr में थोड़ा सा फास्ट होता है, सेम प्रोसेस. Okay, so now the last one will be this one. This is the swiping. तो यहाँ पे swiping कंट्रोल नहीं होता, that is the only issue. Okay, वहाँ पे क्या है, कंट्रोल में खुद अपने तरीके से कर सकता हो आप, डाउन नीचे साइड में. ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो कंट्रोल, दैट इज द ओनली इशू, अदरवाइज यू कैन डू इट. ओके, सो दिस आर द टूल्स इंफॉर्मेशंस व्हिच वी विल गोइंग टू कवर इन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना सही है, और भी बहुत सारा छोटा बड़ा टूल है, जैसे लाइक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ. जैसे यहाँ पे एक बोला है कि दिस वी ऑलरेडी शोन के ये स्ट्रेचनिंग कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप जैसे मैं कोई एक स्ट्रेचनिंग किया एंड आई वांट टू गो बैक टू द माय ओरिजिनल कंडीशन, तो उसको लौटने के लिए यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, दिस इज द कंडीशन. ओके, तो इट विल टेक बैक टू योर इमेज व्हाटएवर इट इज देयर इन ओरिजिनल सिचुएशन. कभी कभी और एक चीज भी यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना ओपन करोगे उतना एरिया पे भी ये लेता है. ओके, सो यहाँ पे भी ऑप्शन स्ट्रेच टू द फुल एक्सटेंट, स्ट्रेच टू द ओनली, जितना भी मैंने व्यू एक्सटेंड किया उतना सब आप रख सकते हो, और नेम तो यू कैन स्ट्रेच टू द व्यू एक्सटेंड, जितना आपका व्यू एक्सटेंड होगा उतना सही होगा. ओके, सो लाइक दैट आल्सो यू कैन टेक, एंड यू कैन टेक बैक आल्सो. ओके, सो हर एक टूल का वो ऐसे ऑप्शन आपको दिया गया. तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी शार्पनिंग को भी कर सकते हो. सी हियर इमेज इज एक्चुअली नाउ ब्लिंड, एंड मैं अगर शार्प करना चाहूंगा तो शार्प. ये किस लिए करते हैं, एजेस को फाइंड करते हैं. हम लोग जो करते थे ना लोग, उसमें जो शार्पनिंग होता है, एज शार्पनिंग, ये टेक्निक को यूज करते हैं हम लोग इसमें. ठीक है, तो इस पे आपका जो भी एजेस होगा, लीनियर एजेस होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरली दिख जाए. ठीक है, तो अगर आप इसको भी बैक करना है तो आप मैनुअली, तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या ओरिजिनल था, तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सो इट विल टेक बैक टू द ओरिजिनल ऑफ दिस. ओके, so these are the, you can say these are the few tools is there, and there is a rotate tool is also there. It is also telling about the rotation. So rotation में क्या है कि is a 0 degree rotation. If you want to make it 90 degree, it will rotate like this. Okay, it will rotate like this 180 degree. So minus 90. So if you want to go back to 0 degree, okay. So this is the, you can operate the rotation from, and this is the scale zooming. अभी इसका नेक्स्ट चैप्टर में इसका है, तो इसको अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ. ये जूमिंग आप मतलब जो स्केल होता है ना, कल हम लोग जो दिखा रहा था कि 20,000 स्केल पे मेरा मैप है, तो कितना स्केल पे आपका मैप है, सो दैट यू कैन फिक्स इट फ्रॉम हियर. ओके, सो सिमिलरली यू हैव ब्राइटनेस, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर. ओके, सो दैट ऑप्शंस इज आल्सो देयर. ओके, सो कुछ होता है बैंड स्पेसिफिक जो एक्टिव होता है, so that also you can control from a different bands. Okay, so this is the you can say the first chapter which we will just finish. Okay, now we will start the next chapter. Okay, so next chapter we will going to learn about the image display concept and introducing the vector data. Okay, so that we will going to see. So suppose मैं इसको हटा ही देता हूँ. So now you see, if I remove everything, whatever I open in NV, so उसको close कैसे करते हैं? उसको close में अगर यहाँ से close कर दिया,
suppose if I close everything from here, okay, the things will be still there in my data manager. तो कंफ्यूजन यहाँ पर, जब आप पहली बार कोई भी इसके बाद कोई भी मैप खोलोगे तो आपका इसमें कोई भी मैप नहीं रहेगा, तो जो भी आप इमेज खोलोगे तो वो डेटा मैनेजर में कहाँ पे आ जाएगा, तो यू विल बी वेरी कॉन्फ्यूज। तो स्पेसिफिक थिंग्स जो भी आपको चाहिए वो भी डेटा मैनेजर में रखना चाहिए। यही तो मेरा अभी काम हो गया, तो मैं इसको क्लोज करूंगा। एक एक करके क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू क्लोज एवरीथिंग, क्लिक दिस टू, क्लिक यस, ऑल विल क्लोज। ओके, सो this is the way how you can clean the total NV whatever you are working on, and now you can start the new work here. Okay, अभी मैं यहाँ पे नया वर्क को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सपोज अभी जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके कुछ डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। So it is pre-required data. What is this? This is an NV. These are data sets of Tokyo, Japan, and these are GeoTIFF products. Okay, these products which will be there, that is under as GeoTIFF. So और ये जो डेटा हम लोग यूज करेंगे ये डिजिटल ग्लोब का डेटा। There's a very high resolution image. This is a 2.8 meters pixels. Okay, per pixel size is 2.8 multispectral image from digital globe. और जो sensor है that is satellite is QuickBird. Okay, QuickBird का इमेज को हम प्रोसेस करना चाहिए। सो नाउ एनवी में क्या है कि आप बहुत सारा डिफरेंट स्पेसिफिक सैटेलाइट्स जो भी है, मतलब जितना भी सारे टाइप का सैटेलाइट्स है, सो ऑल द हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा यू कैन प्रोसेस। तो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं उसका टेक्निक अलग होता है। ठीक है, उसमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन व रेक्टिफिकेशन काम नहीं करता, उसके लिए हम लोग ऑर्थो रेक्टिफिकेशन पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेज के ऊपर, बट ना तो वो लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट मतलब आज का लास्ट चैप्टर। ओके, सो दैट इज द थिंग। लाइक नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, अभी हम लोग जो डेटा रेजोल्यूशन हम लोग यूज कर रहे थे सैटेलाइट डेटा में, लाइक लैंडसैट एंड ऑल, ये मिड रेजोल्यूशन डेटा हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, मिड रेजोल्यूशन का मतलब 10 to 30 तक जो डेटा राइट होता है वो काइंड ऑफ मिड रेजोल्यूशन डेटा। 10 से नीचे वी कैन से इट्स अ वेरी गुड हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट। तो बेस्ट इज ऑब्वियसली द सब मीटर लेवल डेटा सेट्स। तो इसको जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसका टेक्निक अलग होता है। ठीक है, उसका नॉर्मल ज्योमेट्री करेक्शन की जगह पे आपको ऑर्थो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के पहले आपको डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारा इमेज प्रोसेसिंग का टेक्निक व्हिच इज इंक्लूडेड देयर फॉर प्रोसेसिंग हाई रेजोल्यूशन। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसको कैसे करते हैं। ओके, कल हो सके तो कल वो इनवी लाइडा डेटा कैसे प्रोसेस करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इस पे लाइडा डेटा का बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं दिखाऊंगा, अगर मेरे पास वो डेमो डेटा भी है। ओके, सो नाउ वी विल सी दिस डेटा टाइप्स एंड ऑल्सो। जब हम लोग आप काम स्टार्ट करोगे तो इस डेटा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना। ओके, कोई भी डेटा के मतलब आप प्रोसेस करने जाओगे यू हैव टू रीड प्रॉपर्ली अबाउट दैट पर्टिकुलर। ठीक है, क्विकबर्ड डेटा पे आप काम करने जाओगे, ये नॉर्मल डेटा के साथ पूरा ही डिफरेंट होता है। तो देखना कि ये जो बुक आपको दिया होगा उसमें 2-3 पेज सिर्फ डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है। ओके, सो एक डेटा के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हुआ लोग, तो उसके टाइप जो डेटा होता है क्विकबर्ड, देन आपका होता है वर्ल्ड व्यू, ये सारे एक ही टाइप का डेटा है। प्रोसेस आइकोनॉस। ओके, तो इनका जो प्रोसेसिंग टेक्निक होता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ओके, नाउ कंपेयरिंग डेटा विद द स्टेज वैल्यू। सो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे जो डेटा ओपन करेंगे तो टोक्यो जापान वाला। ओके, सो लेट्स ओपन द डेटा सो दैट वी विल एबल टू सी। I hope that is the data on just see on, yeah, okay, fine. So I'm going there. Okay, so यहाँ पे जो टिप वाला इमेज है, so that I am to open टिप only, no? Okay, we will start with the टिप. Let's open this image. Okay, so this is a kind of a high resolution image which we have. Okay, so आप इसको stretch भी कर सकते हो if you want, you can do the pull to extend. Now if you want you can go for the stretching. तो स्ट्रेचनिंग का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, आपको बोला है कि सारे स्ट्रेचनिंग आप कर करके देखिए कि क्या डिफरेंसेस आ रहा है। एज इट इज अ प्रैक्टिस थिंग, सो इट इज टेलिंग अप। मैं एक ही आपको स्ट्रेच करके दिखा रहा हूँ, बाकी यू कैन प्रैक्टिस आल्सो। सो सपोज आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग इट वन, सपोज 5% लीनियर कर जो फाइनल लिया। ओके, नाउ
अगर मुझे कोई स्पेसिफिकली कोई एक पिक्सल या लोकेशंस को आइडेंटिफिकेशन करना है तो मैं उसको कैसे करूँ? तो उसको करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। से सपोज यहाँ पे या तो आप बाई कोऑर्डिनेट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एल्स द रो एंड कॉलम ऑफ पिक्सेल्स, उसको भी देखिए आप कोई भी पर्टिकुलर लोकेशंस को सर्च कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं कोई भी एक जगह को मैं अभी जूम करता हूँ, ठीक है, सपोज एंड आई वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो इसको टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे होगा मेरे पास जो है chapter 3 या स्ट्रेचिंग। सो ये देखिए ये जो वैल्यू है, सो दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक डायरेक्टली। Okay, so I'm just taking this and simply click on enter. So it will automatically taking me to that particular location where it is actually. अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया को और भी जूम इन करना है स्केल को, देखिए अभी यहाँ पे स्केल जूम्ड है 800 मीटर स्केल पे, तो मैं चाहता हूँ इसको 800 कर देता हूँ। सो समथिंग 800, so this will be the place, this will be the place suppose। okay, so that is the location। so देखना आपको भी जब आप करोगे तो then you will get a particular location, कोई एक particular pixels का आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है, यहाँ पे जब अभी तो मैं डायरेक्टली आ गया, गो टू बोल के ऑप्शन से जो अभी आता है, सो दैट इज फॉर योर रो एंड कॉलम। अगर आप डायरेक्टली पिक्सेल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, देन यू कैन गो जस्ट सिंपली गिव द कोऑर्डिनेट एंटर एंड देन इट विल कम ओवर दैट। okay, so now the next important thing which we're going to understand, that is over the color table। okay, so we can operate a different kind of color table over here। so color table को कैसे ऑपरेट करते हैं, so that we will see few things over there। so coloring means suppose you have a single band। okay, so single band को if you want you can put a color and you can see this, इसको हम लोग डेंसिटी साइक्लिंग भी बोलते हैं। okay, there is two technique, one is density cycling, one is given color। ठीक है, तो गिवन कलर क्या करता है, वो एक सिंगल बैंड के अंदर ही पूरा स्ट्रेच वैल्यू करके उसको क्लासिफाई करता है। और स्लाइसिंग क्या होता है, डेंसिटी स्लाइसिंग जो बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स को और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके इट विल शो यू द रिजल्ट्स। ये हम लोग इमीडिएटली, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं कोई सिंगल बैंड कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे मैं कल इंडाइसिस कैलकुलेट किया है ना, मतलब एनडीवीआई डब्ल्यूआई, तो मुझे देखना है कि इमीडिएटली हाई एनडीवीआई किस पे आ रहा है, एंड दैट आई वांट टू सी यूजिंग सम कलर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल में जब इमेज आता है, सिंगल बैंड का ग्रे स्केल में आएगा, यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कलर स्लाइसिंग करना पड़ता है। अब कलर स्लाइसिंग का दोनों प्रोसेस है, या तो एक एक करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे बोला है कि यू कैन ओपन द सिंगल बैंड इन अ ग्रे स्केल, तो कैसे ओपन करूंगा मैं इसको ग्रे स्केल में, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड लोड बैंड इन अ ग्रे स्केल। सो देखिए अभी मेरा यह ग्रे स्केल में ओपन, देखिए सिंगल बैंड में ओपन हुआ है ग्रे स्केल। ठीक है, तो मैं इसको चाहूंगा तो आई कैन पुट अ डिफरेंट कलर। अभी जो फर्स्ट कलर में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, दैट इज द दिस वन, जस्ट सी राइट क्लिक, यू हैव ऑप्शन फॉर दिस चेंज कलर टेबल। तो ये जो कलर टेबल होता है, दिस इज सिंगल बैंड में स्ट्रेच में आपका जो कलर होगा वो स्ट्रेच में वो दिखाएगा, कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो, स्ट्रेचेड वैल्यू में, क्लासिफाइड वैल्यू में नहीं दिखाता। स्लाइसिंग क्या करता है, क्लासिफाइड करता है। देखते हैं अभी दोनों में डिफरेंसेस। ये रेनबो में सपोज कर देता हूँ। सो नाउ यू जस्ट सी, एक ही बैंड है, ठीक है, कोई आपका यहाँ पे क्लासेस आपको जनरेट नहीं हुआ, लेकिन बाय कलर यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड what are the different results। okay, so that is using a group of pixels, it is actually creating the color slices। now if you want to change this particular color slices, that also you can operate right click। okay, so यहाँ पे जाके मोड में जाके you can change this color pattern। okay, तो आपको अगर कुछ दूसरा कलर पे देखना है तो that you can check। जैसे यहाँ पे बोला है सपोज कोई नेचर पे बोला है, ठीक है, नेचर वाला कर देते हैं। so you can change it anything whatever you want। waves में जा सकते हो, change चला गया ना। yeah, okay, so this is the
color pattern you can change it from. So अगर आप suppose इसको आप NDVI के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ पे vegetation is good health, जहाँ पे vegetation good health होगा, so you can check it with a different color, ठीक है, लेकिन ये classified नहीं है, तो इसीलिए जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा वैल्यू हाई है कौन सा वैल्यू लो है, ये आपको यहाँ से पता नहीं चलता, ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसीड्यूर है दैट इज कॉल्ड रास्टर कलर स्लाइसिंग, ठीक है। तो रास्टर कलर स्लाइसिंग में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगेन मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ एज अ ग्रे स्केल, ओके। अभी इसके ऊपर में अगर रास्टर कलर स्लाइसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे अभी देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके बाद नेक्स्ट वाला जो रिमूव हुआ, सो दैट इज वी विल गोइंग टू ओवर डू इट ओवर दैट, लाइक एक बार्न एरिया इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बार्न एरिया इंडेक्स को भी हम लोग ये कलर स्लाइसिंग से डिफरेंशिएट करेंगे कि हाई बर्न एरिया लो बर्न एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंडिंग दिस कलर स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कलर स्लाइसिंग मैं तो सिर्फ एक या दो ही प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस मतलब देखना पीडीएफ में बहुत सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन गो फॉर मिनी, बट एटलीस्ट बेसिक एक या दो प्रैक्टिस कीजिए ट्रेनिंग चलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिया हुआ है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, ओके। बट हाँ, टेक्निक जानने के लिए आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है ऑप्शंस। नाउ सपोज आई एम जस्ट राइट क्लिक ओवर दिस, गो टू दिस वन, न्यू रास्टर कलर स्लाइस, क्लिक ऑन दैट। तो जिस बैंड के ऊपर आपको करना है, ओके सर, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर बैंड। जब सपोज यहाँ पे मुझे बोला है कोस्टल एरोसोल पे करते हैं क्या, देखते हैं किस पे करते हैं ओके, नो वी कैन गो फॉर द सपोज ब्लू बैंड और कोस्टल ब्लू, ओके, कोस्टल ब्लू पे करते हैं, ओके। सो इट इज टेलिंग सम पर्टिकुलर बैंड, बट यू कैन टेक एनी बैंड। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस कोस्टल, लेट्स सी, ओके। सो दिस इज द कलर सेक्शन। इसमें क्या डिफरेंसेस हुआ, इसमें आपका जो वैल्यू है इट इज क्लासिफाइड विद अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, इस पे आपका डिवाइड हो गया है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो, ओके। सो ऑब्जेक्ट टारगेटिंग कर सकते हो। अभी देखना मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये अभी होगा या बाद में होगा, देखते हैं, अभी होगा शायद। कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स को देख के आप मतलब चेक कर सकते हो किस ग्रुप के ऊपर कि कौन सा वैल्यू इट इज एक्चुअली टेकिंग, so that you can check it, okay। So for that we are actually using this type of color slicing, okay। So यहाँ पे कलर स्लाइसिंग को कंट्रोल करने के लिए अभी शायद मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना उसमें कलर स्लाइसिंग का और भी बहुत सारा ऑप्शंस होगा, कि यहाँ पे अभी हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे। So it is actually like if you want a particular color scheme, if you want to use, so that you can use, and if you want to remove all this color scheme from here and you can add your own color scheme from this, okay। So but with a particular range you can use that particular color range and you can, so that is there, you can do in that process also। 285 यहाँ पे just check बोला है example में, it's fine, now it's fine, okay। So this is the way you can control, suppose अगर मैं सबको बंद कर सकता हूँ, मैं खुद का जो कलर स्लाइस है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो भी मेरा कलर स्लाइस होगा वो मैं देख यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ओके। अगर रिमूव करना है कर सकता हूँ, मैं अगर डिफॉल्ट चाहता हूँ तो डिफॉल्ट वाला मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे है, एंड इफ यू वांट टू गिव सम पर्टिकुलर रेंज एंड यू वांट टू सी, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे तब हम लोग देखना कि एक पर्टिकुलर स्लाइस रेंज को हम लोग टारगेट करके कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रोसेस भी यहाँ पे मेंशन है नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो नाउ वी विल गो बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे और एक चीज हम लोग सीखेंगे, दैट इज वेक्टर डेटा ऑपरेशन, ओके। जैसे आर्कजीएस में हम लोग मतलब आर्कजीएस प्रो में भी हम लोग जैसे रास्टर डेटा ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे इनवी इज आल्सो कैपेबल टू वर्क ओवर द वेक्टर डेटा, okay। So any kind of vector data you can overlay and you can control the attribute table, okay, you can change the symbology, vector data के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज हाउ टू कंट्रोल अ वेक्टर डेटा, सो दैट वी विल डू दिस, ओके। सो वेक्टर डेटा को कंट्रोल करने के लिए वी विल गोइंग टू यूज सम वेक्टर फाइल। तो ये वेक्टर फाइल मुझे वहां पे मिलेगा टोकी जापान के अंदर, या फाइन। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बोल के कुछ होगा क्या, रोड,
ओके दिस इज द नाउ इसके अंदर एक शेप फाइल होगा shp दिस वन आई थिंक टोक्यो हार्बर विद shp या दिस इज shp नो अदर shp या फाइन सो ओपन इट ओके ये आपका वेक्टर लेयर ओपन है now the question is how we will going to operate this vector layer according its attribute ठीक है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे तो वो वाला प्रोसेस अभी हम लोग सीखेंगे आपका एक वेक्टर डेटा के साथ कोई भी एट्रीब्यूट रहता है उस एट्रीब्यूट को अगर मुझे हाईलाइट करना है ठीक है तो वो मैं कैसे करूंगा जैसे वहां पे मैंने फील्ड के हिसाब से ऑपरेट कर रहा था ना यहाँ पे भी आप फील्ड के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं सो कैसे करते हैं सो सपोज यहाँ पे जो मेरा अभी ये जो फाइल है तो इसका जो प्रॉपर्टी है वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसको ओपन करना सिमिलरली यू जस्ट डबल क्लिक ओवर इट तो इसका जो वेक्टर प्रॉपर्टी है ये ओपन हो जाए सी है okay so यहाँ से you can control all the attribute information कहाँ पे रहेगा ये देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर पे you have this attribute information मतलब आपका जो ये शेप फाइल था इसके अंदर जितना एट्रीब्यूट है you can able to see it from इसके हिसाब से you can change the color pattern of your vector data which you can overlay over this map ओके अभी इसको कैसे ऑपरेट करेंगे एक तो एग्जांपल्स हम लोग अभी इसको देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट जो करेंगे अभी सपोज ये जो मतलब कलर जो है इसको चेंज करने के लिए बोला है ठीक है इसके ऊपर करेंगे हम लोग अप्लाई हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जो मैक्सिमम स्पीड है उसके ऊपर सो मैक्सिमम स्पीड वाला यू हैव हियर ओके मैक्सिमम स्पीड आई थिंक दिस या ओके सो नाउ यहाँ पे जैसे बोला है कि ये जो कलर पैटर्न है यू कैन चेंज दिस सो इसको बोला है सपोज वेब में होगा शायद हाँ वेब में या वेब्स सपोज मैं कर देता हूँ वेब्स ओके सो नाउ यू जस्ट सी नाउ इट विल गोइंग टू चेंज वंस आई क्लिक ऑन ओके ओके सो जस्ट सी हियर जो मेरा रोड का कलर था वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्पीड लिमिट तो उसके हिसाब से जो मेरा चार्ट आया था तो उसके हिसाब से मैक्सिमम मेरा 0 आया so it is actually explained why it is 0 because of that time most of the traffic is not there in the road. So that's why they are actually creating this type of classification suppose अभी इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं दूसरा कोई सिलेक्ट करके देखते हैं सिमिलर ओके तो इसके लिए मैं हम लोग क्या करेंगे इसके लिए सपोज मैं अभी फिर से ओपन करता हूँ इसका और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की जगह पे अभी मैं इस पर टनल पे करता हूँ we can apply in a tunnel means now we are going to highlight the two things one is road and one is tunnel okay so road will be in a different color tunnel will be in a different color okay so we're going to operate like that so click on the tunnel okay so see here two things will be there so now if I want to change a color pattern of something okay suppose here this one I want to change okay I want to change the color so how will do so I can change give it the color is a green okay and if you want to increase the line thickness that you can do but here I am not changing but this one I will change okay so मैं यहाँ पे line thickness को थोड़ा सा 2 दे देता हूँ और ये जो मेरा है that I give it as a red apply तो जहां जहां मेरा ब्रिजेस होगा टनल होगा जैसे ये अंडर वाटर टनल है ये सबवे टनल है तो सी those all are tunnels are highlighted okay so like that you can operate any kind of vector data files okay अगर आपको vector data files को operate करना है you can operate from this okay so this is a second chapter which we're going to finish that is over the how to control the vector data okay another one is data visualization अब data visualization का थोड़ा सा और भी एडवांस पे जाएंगे अभी ठीक है so that will be on this now here यहाँ पे हम लोग सीखेंगे that is burn severity and ecological risk assessment अभी हम लोग इसको देखेंगे इसमें बहुत सारा और भी टूल्स मॉडल्स इंक्लूड रहेगा ठीक है अभी हम लोग स्लो धीरे धीरे मोर कोड इमेज प्रोसेसिंग थिंग्स के अंदर जाना शुरू कर रहे हैं ठीक है तो इस पे अभी जो करेंगे दैट इज burn severity index that how we going to calculate over the data okay ecological assessment एक हम लोग करेंगे इसके लिए तो ये टेक्निक आप कोई भी फॉरेस्ट फायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है आपको डेटा ऐसा होना जरूरी मिल भी जाएगा बिफोर फॉरेस्ट फायर आफ्टर फॉरेस्ट फायर और आपको एक स्लोप मैप जनरेट करना
हम लोग यही करेंगे अभी, मतलब हम लोग 2 डिफरेंट टाइम का इमेज लेंगे, एक बिफोर फॉरेस्ट फायर, एक आफ्टर फॉरेस्ट फायर। ओके, और फॉरेस्ट फायर किसके साथ रिलेटेड होता है, स्लोप के साथ रिलेटेड होता है। तो इसीलिए एक स्लोप इमेज से वी आर क्रिएटिंग वन मास्क इमेज, हम लोग एक मास्क इमेज जनरेट करेंगे। तो स्लोप की हिसाब से दैट मास्क इमेज विल हाईलाइटेड ओनली द एरिया विच इज हाई स्लोप, ओके, जहां पे फायर बर्न ज्यादा हुआ है वो मैप हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले डिस्कशन कर दिया, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं एक स्टेप के बाद क्या स्टेप कर रहा हूँ। आवर मेजर आउटपुट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट some kind of burn severity map, ओके, तो उसको हम लोग क्रिएट करें। तो इसके लिए हम लोग विल फर्स्ट थिंग विल गोइंग टू लर्न दैट इज एटमॉस्फेरिक करेक्शन प्रोसेस। तो पहले हम लोग इसको सारे बंद कर देते हैं क्योंकि हम लोग चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो इस पे हम लोग जो डेटा यूज करेंगे दैट इज अंडर फ्रॉम लाइक कैलर। So those data sets are there here. This okay. तो यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेडियंस में। ओके, वन इज प्री फायर, अनदर वन इज पोस्ट फायर। तो अभी प्री फायर और पोस्ट फायर मेरा जो दोनों इमेज होगा मुझे आइडेंटिफाई करना है बर्न एरिया और फिर उसको क्लासिफाइड करना अकॉर्डिंग टू स्लोप। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अभी पहले जो बोला है दैट यू जस्ट ओपन सपोज अ प्री फायर इंसिडेंट। तो मैं यहाँ पे प्री फायर का जो डेटा है तो उसको ओपन करता हूँ। दिस इज अली 2008, ओके, रेडियंस डेट। इसको ओपन करते हैं, प्री फायर डेटा रेडियंस इमेज डेट फाइल, ओके, दैट यू हैव टू ओपन, सिंपली ओपन इट। ओके, सो दिस इज योर डेटा प्री पोस्ट डेटा सेट्स। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस। तो एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस ये जो होगा दैट इज क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस। ये क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। The nature of this remote sensing require the solar radiance through the atmosphere before it is collected in by the instruments. Okay, so as such the radiance in our ALI, this is a ALI image. Okay, ये भी मैंने नहीं बताया। ALI is kind of a sensor जो Landsat के सेम पाथ में मिलता है, आपको डेटा भी सेम हाइपरॉन के साथ सेम पाथ में मिल जाएगा ALI का भी सेंसर। तो इसलिए कभी हम लोग हाइपरस्पेक्ट्रल का डेटा को प्रोसेस करने के टाइम ALI का इमेज को रेफरेंस के लिए लेते हैं क्योंकि दोनों का पाथ और पास टाइम सेम रहता है। तो जहां का उसी जगह का जो मतलब हाइपरस्पेक्ट्रल का इमेज के साथ ALI का इमेज भी मिल जाता है। ठीक है, तो हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा पे जो लोग ज्यादा काम करते हैं दे आर एक्चुअली डूइंग वर्क ऑफ ALI मोर। ओके, सो इसलिए मैं ये बता दिया। बट एनीवे ALI जो इमेज है यहाँ पे इसका जो रेडियंस वाला इमेज है दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। रेडियंस इज ऑलवेज गिविंग इनपुट फॉर योर दिस फ्लश मींस एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस। ओके, जो क्विक फॉर क्विक भी हो उसमें आपका रेडियंस इमेज ही आपका इनपुट जाएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, जो भी आपको मतलब वो फ्लश करेक्शन हो या क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस हो उसके लिए आपका जो इनपुट जनरेट होगा दैट इज फ्रॉम द रेडियंस इमेज। ओके, तो अभी इस पे हम लोगों का जो रेडियंस इमेज है जो मैंने अभी यहाँ पे खोल के रखा। ओके, सो और जो आफ्टर एटमॉस्फेयर करेक्शन जो जनरेट होता है वो क्या होता है, एनी आइडिया? जो इनपुट में दे रहा हूं दैट इज रेडियंस और आफ्टर एटमॉस्फेयर करेक्शन पास उसके बाद मेरे पास जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, क्या होगा, क्या होता है वो, रिफ्लेक्टेंस। कल भी मैंने बोला था, ठीक है, हम लोग रेडियंस डेटा को रिफ्लेक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं ना, टीओए करेक्शन। कल मैंने जो नाम दिखाया था वो क्या था, अपरेंट रिफ्लेक्टेंस। वो जो टूल था ना दैट इज अपरेंट रिफ्लेक्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेंस को कैलकुलेट, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली टेलिंग इट हियर। सो नाउ यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग करेंगे दैट इज अंडर द रेडियोमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जाइए, अभी हम लोग टूल बॉक्स का हेल्प लेंगे। तो दिस इज द टूल बॉक्स, एनवी टूल बॉक्स, इसमें देखिए रेडियोमेट्रिक करेक्शन में है। सो दिस इज द रेडियोमेट्रिक करेक्शन, रेडियोमेट्रिक करेक्शन अंडर दिस द एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस इज देयर, एटमॉस्फेयर करेक्शन मॉड्यूल। आर यू एबल टू सी? दिस इज द एटमॉस्फेयर करेक्शन मॉड्यूल, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर करेक्शन मॉड्यूल है। सो ये एटमॉस्फेयर करेक्शन मॉड्यूल के अंदर आपको 2 ऑप्शन है, फ्लश करेक्शन
एंड क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन। तो क्विक एटमॉस्फेरिक करेक्शन जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोल दिया गया है कि क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। So ENVI has many methods for correcting effects of atmospheric images. Okay, for the exercise we will use one of the quickest method. Okay, scene-based method. Okay, called quick atmospheric corrections. That word with the visible and near infrared throughout the short wave infrared wave range. Okay, तो इस wave range पे जो bands है उस पे ये apply हो सकता है, उसके बाहर का नहीं कर सकते, ठीक है। So that's why it is telling. Now quick atmospheric corrections relies on the diversity observed by the pixel spectra. Okay, so contain the image scenes determine the atmospheric correction parameters. Okay, so the output will be the QA process is a surface reflectance image. Okay, यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. The scale into the 2 byte single integers. Okay, reflectance factors will be the 10,000. So that will be the image it will going to create. So let's start with the quick atmospheric process. यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ मेरा प्री फायर इंसिडेंट का. ओके, क्लिक ऑन ओके. अब यहाँ पे देखिए सेंसर स्पेसिफिक, आप मैंने क्या बोला था, कोई भी ये जो प्रोसेस होगा सेंसर स्पेसिफिक होता है. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंसर्स आपको मिल जाएंगे. तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, जब मैंने फाइल को अपलोड किया है बाय डिफॉल्ट उसने सेंसर्स को ठीक कर लिया. अगर ये ठीक नहीं आता है देन यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर सेंसर. ओके, तो ये सेंसर स्पेसिफिक होता है. अब नाउ सपोज कैन गिव इट पेस्ट. ओके, क्लिक ऑन ओके. Okay, so yeah, this is my quick atmospheric correction image. Okay, this is after atmospheric corrections it came. So may will not able to understand directly now. So if you just click over here, so you can see this is a reflectance value. Okay, so like that you can understand that this is actually the reflectance. Now the question is I have to do this for the both image, both here. So this is my pre-fire. This is a post-fire. Oh, okay, I have to delete it again. Otherwise it will confuse. Delete it. That will be better. You can create it. Okay, it's not allowed. Sorry, मैं नाम गलत दे दिया. So if you give a wrong name, then it will also come as a wrong results. Anyway, we will do it 2 minutes later. So I will take the pre-fire resident image. Okay, so I will go for atmosphere correction, quick atmosphere correction process. I will select it. Sensor will by default it is coming. So the thing is I have to select this one. Ali post fire. This is a post fire, pre-fire, sorry. Okay, so because this is my pre-fire incident data, so I'm just simply click on that. Okay, so this will be my pre-fire quick atmosphere correction process. Done. क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट जनरेट करेंगे. हम लोग इसका 2 एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, फिर एक डेम का स्लोप मैप जनरेट करेंगे, फिर तीनों का सबसेट करेंगे, तब जाके हम लोग फाइनल आउटपुट जनरेट करेंगे. तो अभी बहुत सारा आउटपुट जनरेट होगा, तो एक नाम में कंफ्यूजन हो गया तो इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो अभी मेरा जो जनरेट हुआ दैट इज अ प्री फायर इंसिडेंट का डेटा. अब मैं पोस्ट फायर इंसिडेंट को भी सेम क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस. अब क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि जब भी फायर इंसिडेंट मतलब देयर इज सम इफेक्ट इन योर एटमॉस्फेरिक डेटा.
तो उस पर आपको हेज रहेगा, बहुत सारा डिफरेंट इंफॉर्मेशन रहता है, तो उसको रिमूव एक सर्टेन लेवल का रिमूव करने के लिए वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस टेक्निक. ओके, तो नाउ सिमिलरली आई विल यूज द सेम टेक्निक ओवर द पोस्ट क्लासिफिकेशन. तो इसके लिए ओपन करना पड़ेगा now post gradient stat. Fine, now go for this quick application post fire estimate. Okay, so यहाँ पे now I'm giving a name of this one. Okay, we can run it. Okay, post fire, now I'm running. ओके, सो अभी मेरे पास एटमॉस्फेरिक करेक्टेड 2 डेटा है, प्री फायर और पोस्ट फायर का. तो मुझे बाकी जो 2 लेयर है उसको मैं हटा दूंगा. यहाँ से कहाँ से हटाएंगे? यू कैन सिंपली रिमूव फ्रॉम दिस. सो प्री फायर क्यू डैट इट्स रिक्वायर्ड, इट्स फाइन. ये मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट सिंपली क्रॉस इट डाउन. एंड दिस 2 इज QAC, इट्स फाइन. आई डोंट रिक्वायर दिस वन, आई जस्ट सिंपली रिमूव दिस. सो नाउ वी हैव प्री फायर एंड पोस्ट फायर वन. Okay, so now the next important step which we will going to do, that is we will going to calculate a slope map. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक slope map को calculate करेंगे. So slope map calculate करने के लिए, to calculating the slope map we have to use some topographic modeling. Okay, under some DEM data sets. एक DEM data है, उसके ऊपर हम लोग topographic modeling apply कर सकते हैं. तो टोपोग्राफिक मॉडलिंग इसमें अच्छा चीज क्या है कि जैसे मैं कल जो प्रो में दिखा रहा था यार, एक डेम डाल के मैंने वहां पे स्लोप कैलकुलेट करके दिखाया, फिर कॉन्टूर जनरेट करके दिखाया. यहाँ पे भी सेम टूल है, बट एक बार से आप सारे एक साथ क्रिएट कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज. अगर आप चाहो तो आप सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कीजिए, अगर आप चाहो तो एक साथ यू कैन जनरेट ऑल द प्रोडक्ट विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द डेम. Slope, aspect, everything you can calculate. Just see क्या कर सकते हैं. So that we called as this one. This is called topographic modeling. Okay, तो topographic modeling में जाता हूँ. terrain के अंदर, हाँ? Yes. हाँ, you can do this, but अभी इसमें इतना समझ में नहीं आएगा आपको. by visualization you can can't understand much, because यहाँ पे तो मैंने अभी normal true color image open किया है. Pixel wise you can understand the changes. Okay, so visually you will not understand much. Atmospheric correction का process हमेशा है कि मेरे को अच्छा data मिलेगा. It's not like that. Pixels पे कुछ hazes रहता है, like कुछ water vapor रहता है. Okay, कुछ other atmospheric effect रहता है. तो वो इसको take over करता है. Maybe visually you will not understand, but the results which will come in your classification, that will coming better. तो उसको आपको accuracy assessment में आके check करना है. यहाँ पे you can't. हाँ, done correctly that you can do. Done correctly, तो change हुआ नहीं ना. Done correctly that you can check. The formula which is running here, that you have to go for the pixel wise, you have to calculate. Same process. Okay, जो मैंने आपको बताया. जो TOA correction कर रहे हैं, ये तो TOA correction ही है. सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट सेंसर स्पेसिफिक. जैसे यहाँ पे अली के लिए दिया है ना, तो अली का पैरामीटर क्या है, तो आपको वेबसाइट में जाना पड़ता है. अली का वेबसाइट में जाना पड़ेगा. वहीं के जाने के बाद वहाँ पे देखना, इसको बोल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. अगर मुझे सपोज मैं लैंडसेट का करना चाहता हूँ, लैंडसेट का वैलिडेशन करूंगा, ठीक है, तो कैसे करूंगा? मैं लैंडसेट के साइट पे जाऊंगा ऐसे. ओके, इसको बोलते लैंडसेट, क्या था उसका, TO करेक्शन, लैंडसेट TO करेक्शन. आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे देखिए USGS लैंडसेट लेवल 1 डेटा प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया जाएगा. दैट फॉर्मूला यू हैव टू कन्वर्ट. यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला दिया, दिस इज द फॉर्म. ओके, ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा. तो इसमें आपको क्या दिया है? L lambda is equal to your TOA radiance. ठीक है,
फिर क्या है MLQLC मींस बैंड स्पेसिफिक मल्टीपल रिस्केलिंग फैक्टर वैल्यू, ओके, और AL इज एडिटिव बैंड रिस्केलिंग फैक्टर वैल्यू, और Q इज अ क्वांटिसाइड कैलिब्रेशन, मतलब ये DN वैल्यू है, मतलब ये आपका सैटेलाइट इमेज इनपुट होगा इस पे। लेकिन ये दोनों वैल्यू कहां पे होगा, कल मैंने दिखाया था। अब यू कैन गो सैटेलाइट इमेज के अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैंने कल बोला था ना कि दिस इज द बैंड स्पेसिफिक स्केलिंग फैक्टर वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, रेडियंस मल्टीबैंड वैल्यू, एडिटिव बैंड वैल्यू, ठीक है, से दिस टू, सॉरी, रिफ्लेक्टेंस का, ठीक है। यहां से यू हैव टू टेक अ सिंगल वैल्यू। अब इसके बाद आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेटर में डालना है, कोई एक पिक्सल का वैल्यू देके, मतलब यू कैन जूम इट, जूम लेवल आपको उस लेवल पे करना है, जूम लेवल उस लेवल पे किया, एक पिक्सल का वैल्यू लिया, देन यू हैव टू गिव दिस। इसमें जो पिक्सल का वैल्यू कहां पे आएगा, सपोज इसके में बोल, पिक्सल वैल्यू कहां पे आएगा, ये एल इज योर पिक्सल वैल्यू। एल पे जो पिक्सल को आपको वैलिडेशन करना है उसका वैल्यू देना है। देखिए कैलकुलेटर में आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज योर आउटपुट, जो एटमॉस्फेयर करेक्शन का है वो आउटपुट वैल्यू है, उसके साथ इसको मैच करना, देन विल अंडरस्टैंड कि इट इज कमिंग एज अ रिफ्लेक्टेंस, दिस प्रॉपर वैल्यू इज कमिंग और नॉट, ठीक है। ये पहले हम लोग मैनुअली कर रहे थे, एक्चुअली ये वन टाइम वैलिडेशन होता है। अगर मेरा एक एक्चुअली क्या, सपोज आई एम डूइंग दिस लैंडसेट के लिए हम लोग करते थे, क्योंकि हमें सर्विस टेम्परेचर काम करता था तो हम लोग को करना ही पड़ता था एटमॉस्फेयर करेक्शन। तो हम लोग क्या करते थे, एक इमेज के ऊपर टेस्टिंग करते, अगर एक इमेज के मेरा सही आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट कोई भी नया टूल जब इनवी में लॉन्च होता है यू हैव टू वैलिडेट वन टाइम। ये जैसे रेडियंस रिफ्लेक्टेंस है, एक बार आपको मैनुअली वैलिडेट करना होता है कि ठीक आ रहा है या रिजल्ट नहीं गलत आ रहा है। अगर गलत भी नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है, एक रीस्केलिंग फैक्टर होता है, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए अलग होता है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है, उसको आपको हेल्प फाइल में जाके पढ़ के देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है। जैसे आप लैंड सरफेस टेम्परेचर प्रोसेस करोगे, मूडीज का एक रीस्केलिंग फैक्टर होता है, उसको फैक्टर का वैल्यू वेबसाइट में दिया हुआ है, उसको आपको मॉडल में आके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलता है। ऐसे हिडन वैल्यू भी रहता है सैटेलाइट इमेज, ठीक है, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके। डिफॉल्ट में बात है, क्योंकि ये क्या है जो हम लोग रिमोट सेंसिंग में कर रहे हैं, इट्स अ मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, वी आर कंट्रोलिंग द स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ वन पिक्सल्स। अगर इफ वन पिक्सल्स वैल्यू इज कमिंग राइट, बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू तो सारे फॉर्मूला मतलब जो रन होगा ईच पिक्सल के ऊपर रन होता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो सही है, इसीलिए हम लोग एक पिक्सल्स का वैलिडेशन करते हैं, ओके। सो नाउ सपोज दिस, नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे कोई भी सेंसर्स का एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस करते हैं। नाउ विल गो बैक टू दिस, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्ट अ स्लोप एनालिसिस यूजिंग द एलिवेशन डेटा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि टोपोग्राफिक मॉडलिंग को हम लोग यूज करेंगे। सो देखिए टोपोग्राफिक मॉडलिंग के अंदर वी कैन क्रिएट ऑल दिस इन अ सिंगल शॉट। प्रो में ये हम लोग अलग अलग करके जनरेट करते हैं, डेम डेटा को इनपुट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक बार डेम देके तो आप सबको एक साथ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सब चाहे आपको सब कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ स्लोप चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं सिर्फ स्लोप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे इनपुट क्या देना है मुझे, इनपुट दूंगा मैं मेरा डेम। अभी मैं डेम को यहाँ पे खुला नहीं है तो डेम को खोल लेते हैं, सी दिस इज अ डेम डेटा, ओके। तो इसको मैं एज अ इनपुट में यहाँ पे दे दूँ, आई एम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके, तो डेम मेरा इनपुट आ गया, ओके। सो आई वांट टू कैलकुलेट अ स्लोप ओनली, तो अभी मेरा जो आउटपुट जनरेट होगा दैट इज स्लोप मैप, जस्ट क्लिक ऑन ओके, फाइन। ये मेरा अभी स्लोप मैप आया। सो इफ यू वांट टू सी विद द रास्टर कलर, वो आप करके देख सकते हो, ठीक है, आप रेनबो में भी डाल के देख सकते हो, नहीं तो आप इसको स्लाइसिंग कर सकते हो, ओके। सो आप इसको साइज स्लिंग भी कर सकते हो, स्लाइसिंग, okay, so it will show you the color slicing image also,
नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इट, ये देखने के लिए बोला है आपका कलर स्लाइसिंग करके, यू कैन चेक इट। बंद हो स्लोप। Okay, so this is my slope image. Now what I am to do, अभी जो मेरा स्लोप मैप जनरेट हुआ है एटीएम से, ठीक है, सो मैंने इसको देखा। ओके, सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू डू सबसेटिंग। अभी हम लोग सबसेटिंग करेंगे। जितना एरिया मुझे मेरा बर्न आउट हुआ है उसका मेरे पास एक आरवाई फीचर्स है सब। ओके, सो यूजिंग दैट पर्टिकुलर आरवाई वी विल कट आउट दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि मेरा इतना बड़ा एरिया लेके मुझे काम नहीं करना है। जितना एरिया बर्न आउट हुआ है आई वांट दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो रिडिफाइंड आरवाइज है, वी आर गोइंग टू यूज दैट आरवाई टू सबसेटिंग एरिया। ये जैसे प्रो में मैं कल सबसेटिंग सिखाया था, सपोज सोच लीजिए कि अभी एनवी में सबसेटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, कौन सा बोला है देख लेते हैं। ओके, ये फायर एक्सटेंट, ओके, एक एक्सएमएल फाइल है। हाँ, तो मॉडल के ऊपर रख देते हैं। ओके, तो ये मेरा अभी फाइल है। व्हाट आई वांट टू कट दिस ROI with all the bands. ओके, तो स्टडी स्पेसिफिक करेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे ये जो करना होता है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये आपका रहता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, सबसेट डेटा विथ फ्रॉम द ROI। ओके, सो क्लिक ऑन दैट। सो फर्स्ट अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज वी आर एक्चुअली मेरा ये आउटपुट का नाम ठीक से नहीं दिया, ये आउटपुट नेम शुड गिव एज अ स्लोप मैप, बट एनीवे चलो कोई बात नहीं। सो वी कैन गिव दिस स्लोप मैप। ओके, आई वांट टू कट इट आउट विद दिस सिलेक्ट। ओके, सो आउटपुट फाइल। तो यहाँ पे मैं मास पिक्सल्स पे इसको आउटसाइड ROI को 0 रखूंगा। ओके, एंड आई विल गिव this as a name, online slope subset, मतलब ये जो slope image होगा so that will be subsetted area. Okay, click on OK. Now first this one is ready. अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाद में वहां से कर देंगे। Now my next objective is to subsetting these two, post and pre-fire. So तो भी बंद कर दिया मैंने। Okay, fine. So now you can take the other two layer like post and pre-fire, दोनों ही है ना, ये दोनों को ही मुझे करना है। So मैं चाहूँ तो वो फाइल को देकर भी उसको काट सकता हूँ, बट मैं सबसेट से ही कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा ROI है उससे ही कर रहा हूँ, फाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम टेकिंग दिस सपोज फॉर द पोस्ट फायर। ओके, दिस इज अ पोस्ट फायर। ये थोड़ा सा रिमेंबर रखना, क्योंकि एक बार आप इसको ओके कर दिया, उधर जाके आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फाइल आपने सिलेक्ट किया है। यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। तो पोस्ट फायर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा किया है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल द पोस्ट फायर का। सो लेट्स सी। Okay, and now we have to do the next one, pre-fire. ये post fire का हो गया, now pre-fire. अच्छा, एक गड़बड़ किया है शायद। अच्छा, ये मैंने नहीं दिया था, anyway उसको देना चाहिए था। ओके, सो देखते हैं दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। अब पहले इसको ऑफ करके देख लेते हैं, चेक करके। हाँ, एक गड़बड़ हुआ है, ये पोस्ट फायर वाला गड़बड़ हुआ है। एक्सटेंड शुड बी सेम। अब एक्सटेंड का क्यों गड़बड़ हुआ,
क्योंकि मैंने वहां पे जो जीरो मास्क है वो दैट वी डिडंट अप्लाई ओवर दैट पर्टिकुलर इमेज, तो वही करना पड़ेगा। तो एक नया नाम, ये जो पोस्ट वाला है इसको और एक बार जनरेट करना पड़ेगा। Let's see. इसको यहाँ से हटा, पोस्ट फायर तो रिप्लेस हो जाएगा। So that will be post fire. Okay, ये we didn't do this one, that's why it is coming wrong. Okay, so इस पे post fire you can take this value, okay, so now you click on OK. Yes, generate हुआ, see free fire, post fire generate नहीं हुआ, कुछ अलग करना पड़ेगा। Yeah, it's showing it's generated, but confused हो गया। ना सारा खुल गया, सारे हटाओ। Okay, so post fire QA dat, this is pre fire sub and it is post fire. Okay, so इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि ओपन है कि नहीं। Load as yes, okay, so that means it's generated. So अभी मेरे पास 3 लेयर मुझे चाहिए। Okay, so I want this one. No, this is some wrong, it's not generated, इसको रिमूव करते हैं। Pre-fire is coming. Okay, post fire को हटा देते हैं। सब डिलीट करना, पोस्ट फायर को डिलीट करना। ओके, प्री फायर है, सारे पोस्ट फायर है। ओके, इसको डिलीट कर दो। कुछ तो खुला है, चलो फिर से करते हैं। So now the post fire is this one. इसको 2 कर देते हैं, देखते हैं। ओके, सो मेरा अभी पोस्ट फायर प्री फायर हो गया है। आई हैव द स्लोप मैप आल्सो। ठीक है, अब मुझे जो जनरेट करना पड़ेगा दैट इज आई हैव टू क्रिएट अ मास्क। ओके, क्योंकि मास्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्लोप। तो बर्नआउट जितना होगा तो हाई स्लोप में वो ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग वन मास्क। तो ये मास्क हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, सो दैट इट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग इट हियर। So let's start with the creating the mask. So creating mask के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शंस जो है that is under the raster management. तो ये आपका देखिए raster management के अंदर you have the options build mask, build a raster mask. Okay, so यहाँ पे बेटर होगा बाकी को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, कंफ्यूज हो जा रहा है। अभी हम लोगों को जो जो चीज नहीं चाहिए you just simply remove it from here. जैसे we don't require this pre-fire queue dat, remove. ओके, पोस्ट फायर भी हम लोगों को नहीं चाहिए, रिमूव। टोपोग्राफिक वाला स्लोप मुझे नहीं चाहिए, रिमूव। डेम भी नहीं चाहिए, रिमूव। एक्सटेंड भी नहीं चाहिए, रिमूव। स्लोप चाहिए। ओके,
So slope is the important parameter here. So build a raster mask. Now you will going to create formaline subset slope. I think this one only. Okay. So that we need to give as a input. So click on OK. So यहाँ पे अगर आपको कोई भी डेटा रेंज को इंपोर्ट करना है, so you have to select from here import data range, और उसके बाद आपको फॉर्मलाइन स्लोप को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस स्लोप के ऊपर आपको मतलब जिस मतलब इमेज के ऊपर आपको मास्क डालना है। ओके, सो क्लिक ऑन दैट एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे एक रेंज सपोज बोल दिया है कि दिस पर्टिकुलर रेंज में वी वांट, ये रेंज है कुछ 25 होगा आपका मिनिमम वैल्यू सपोज, और 60 होगा मैक्सिमम वैल्यू स्लोप, ये स्लोप है। So within these slopes we are actually putting the mask. Okay, so now click on OK. अभी यहाँ पे you can create a name, जैसे यहाँ पे एक नेम दिया है mask slope GT20. Okay, so we will give a name. Now click on OK. आप देखिए mask generate हो. So this is the mask image. Now we almost near to do the change analysis. अब change analysis जब करेंगे तो हम लोग ये mask पे डाल के we are actually applying the change analysis over 2 different time frame. So automatically it will classify us which is the high burn area, which is the low burn area, like that. Okay, so इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए अभी एक step बाकी है. That is we call as a characterize level of burn severity within a fire area. या आप कोई भी इमेज पे कर सकते हो, ये मैं हाई रेजोल्यूशन पे दिखा रहा हूँ, बट इफ यू वांट टू डू इन लैंडसैट इस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट प्रोसीड्यूर विल बी सेम, ठीक है, प्रोसीड्यूर विल सेम ओनली जो हम लोग एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस किया है, सो दैट यू हैव टू सिलेक्ट एज अ लैंडसैट सेंसर, दैट्स ऑल, बाकी जो प्रोसेस है इट इज सेम। सो नाउ यहाँ पे जो अभी करेंगे, सो दैट इज अंडर चेंज डिटेक्शन वर्कफ्लो, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, यू कैन गो टू द चेंज डिटेक्शन, देखिए चेंज डिटेक्शन का एक यहाँ पे दिया हुआ है चेंज डिटेक्शन, ओके, सो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे दैट इज इमेज चेंज वर्कफ्लो, ओके, सो दिस वन इज इमेज चेंज वर्कफ्लो। सो इसमें आपको दो डिफरेंट जो डेट है प्री एंड पोस्ट का जो सब एरिया था मेरा, उसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इमेज पे मेरा जो आएगा दैट इज दिस वन, ओके, सो दिस इज सो फर्स्ट में क्या रहेगा, प्री फायर, okay, so pre-fire will be in your time 1 pre-fire image, so pre-fire is this one, okay, and post-fire में आपका जो post-fire image होगा time 2 में, and now you want to input the mask, so mask आपको यहाँ से input करना है, जो mask अभी हम लोगों ने generate किया GT20, okay, so you can give apply, so now your दिस इज अ वर्कफ्लो, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3-4 स्टेप एक साथ रन हो, नहीं तो ये सारे हम लोग को मैनुअली करना पड़ता था, पहले हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे मास्क डाल देना पड़ता था, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता था, ठीक है, फिर डिफरेंसेस कैलकुलेट करना पड़ता था, फिर इंडेक्सेस कैलकुलेट करना पड़ता था, ऑल सेपरेटली। नाउ यू आर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स इन अ सिंगल, लाइक सोच लो कि जो मॉडल बिल्डर है उसको ऐसा एक वर्कफ्लो बना के दे दिया गया है, तो 3-4 जो काम है वो आपको एक ही जगह पे हो जाए। Okay, so that is why it's workflow. Now you just see here, if I go for the next, अभी ये रन होगा, ठीक है, उस इमेज पे रन हो रहा है, रन होके नेक्स्ट स्टेप में वो जा रहा है, see, okay, अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, ये हम लोग को पहले करना पड़ता था, दैट इज नाउ registration process. So यहाँ पे we have to do the registration image automatically, that we will apply, okay, so let's see, register image automatically, that will apply, then go for the next। अब ये प्रोसेस रन होगा, नहीं तो ये पहले हम लोग को हर एक प्रोसेस मैनुअली करना पड़ता था, एक एक बार करके वो रन होता था, पहले ऐसा वर्कफ्लो नहीं था इनवी में, पहले हम लोगों को हर एक प्रोसेस मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, अभी यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे, दिस इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओवर द इमेज डिफरेंसेस और इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी विल गोइंग फॉर I think image differences, okay fine, okay, so इसको नेक्स्ट करते हैं,
क्योंकि डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे हम लोग पहले इमेज के साथ अभी इमेज का, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस के अंदर भी 3-4 ऑप्शंस होता है, दैट इज डिफरेंसेस इनपुट बैंड, तो इनपुट बैंड के साथ डिफरेंस वो है, डिफरेंस ऑफ फीचर इंडेक्स, फीचर जो है उसका इंडेक्स का जो डिफरेंसेस वो करेंगे, नहीं तो स्पेक्ट्रल एंगल डिफरेंसेस कौन सा करेंगे। सो वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंसेस फीचर इंडेक्स। इंडेक्सिंग जो कल हम लोग दिखा रहे थे ना, वहां पे मैंने दिखाया ना 3-4 इंडाइसेस, जैसे 27 इंडाइसेस, मतलब 70 इंडाइसेस जो आप प्रो में कर रहे थे, यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ इंडाइसेस यू कैन टारगेट। सो दैट इज दिस वन, दिस आर सम स्पेसिफिक वेजिटेशन वाटर बिल्ट अप बर्न, यहाँ पे भी होता है जो मैंने कल दिखाया था प्रो में, ठीक है, यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे सपोज मैं अभी जो करेंगे दैट इज बर्न एरिया इंडेक्स, ठीक है, आई थिंक बर्न एरिया आपको करने के लिए, यस बर्न एरिया इंडेक्स, okay. So now you can go to advanced is fine, now simply go to the next. So now it will going to create that, okay. So अभी हम लोग को ये क्या करना है, मुझे थ्रेशोल्डिंग में नहीं जाना है, we are going to export the image, difference image only. लोग जो करेंगे that is we are going to export the difference image. So just simply click on next and इसका आप कुछ नाम दे सकते हो whatever you want, but मैं अभी कुछ नाम देखते हैं, क्या नाम आ रहा है, सब डिफरेंस, ओके यही रख देता हूँ, इसे टाइप करने के लिए बोल रहे हैं, ओके फाइन। इमेज डिफरेंस बर्न इंडेक्स ऐसे भी नाम दे सकते हो, इतना बड़ा नाम नहीं, ठीक है वही कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे बोला है इमेज डिफ, ओके सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ओके सो दिस इज योर डिफरेंसेस इमेज। अब इसको आप स्लाइसिंग करके देख सकते हो, ओके तो स्लाइसिंग तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे राइट में जाके कलर स्लाइस, ओके देन क्लिक ऑन ओके। सो एक बाय डिफॉल्ट आपको एक कलर वो जनरेट करके यहाँ पे दे देता है, बट हियर सपोज दे आर ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड अ क्लासेस, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, करके यू कैन क्लासिफाई। सपोज यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड क्लास वैसे, दिस इज द फाइल, ओके so according to the different class range it is actually going to show you the high burn area and low burn area, okay. इसका जो लास्ट जो चीज है इस चैप्टर का लास्ट में, दैट इज अगर आपको ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखाना है, सो दैट यू हैव टू टेक इट इन पीपीटी, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑप्शन से यू कैन टेक दिस डायरेक्टली इन पीपीटी, ओके। तो ये आपको बोलते हैं चिपसेट्स, you can click over this chip to PowerPoint, okay, then click on chip, so automatically it will going to create, it will take few minutes time, okay. अब इसको आप सेव करके रख दीजिए, आपका जो फाइनल रिजल्ट्स है अब इसको सेव करके रख दीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हम लोग को ये जरूरत है बाद में, नहीं तो आपको फिर से इमेज ओपन करके उसको यहाँ से लेने के बाद आपको प्रेजेंटेशन, तो आप इस जब सारे रिजल्ट बनेगा आप उसका एक पीपीटी बना के यू कैन सेव इट। From here also you can see this is a final output, okay, that is the burn area index final output. So like that you can control it, okay. So one more chapter और एक करते हैं आज, ठीक है 5 चैप्टर, फिर इसके बाद लंच के बाद we will go for the hands on all this, okay. ये हाँ नहीं, यहाँ पे लेजेंड्स नहीं आते हैं, ठीक है ये आपको हाँ उसको आपको बाद में उसको आपको ले आना पड़ेगा, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, दिस इज जस्ट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट्स विल ओनली कम, ओके। सो नाउ दिस क्लोज, ओके। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पे वी विल गोइंग टू लर्न द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द वर्ल्ड व्यू डेटा सेट्स, और वर्ल्ड व्यू डेटा को प्री प्रोसेसिंग करना सीखना, बेसिकली वी विल गोइंग टू फोकस ओवर हियर the authentications, okay. So that is our focus over here, RCP authentications, okay. So RCP authentications कैसे करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देख लेंगे इस पर, लेकिन ये हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज करते हैं, तभी हम लोग इस पे ये टेक्निक अप्लाई करते हैं।
सब बंद कर देते हैं। ओके, सो इस पे जो डेटा अभी हम लोग यूज करेंगे दैट इज डिजिटल ग्लोब। ओके, डिजिटल ग्लोब वर्ल्ड व्यू 2 डेटा मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी, ये टोक्यो जापान का ही है, सेम डेटा सेट्स वी आर गोइंग टू यूज इट हियर। ओके, सो चले जाते हैं ओपन फोल्डर जापान। सो इस पे जो फर्स्ट इमेजरी यूज करेंगे दैट इज 10 जन P00T image. Okay, so that we are going to open. Yeah. Okay, so this is our first image and इस पे भी पहले आपको प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। सो प्री प्रोसेसिंग का स्टेप्स इज सेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो रेडियंस है वी आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियंस। ओके, सो रेडियंस कैलिब्रेशन रेडियंस अभी हम लोगों ने सीखा कहाँ से कैलिब्रेशन करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट किया है, नाउ दिस टाइम वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियंस। ओके, तो रेडियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वी विल गोइंग टू सी नाउ। तो एनवी टूल बॉक्स के अंदर यू विल हैव द रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन, जस्ट सी हियर। ओके, सो इस पे अंदर आता है रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन। सो जस्ट सी हियर, दिस इज द रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन। ओके, सो check it, this is your radiometric calibration. Okay, so now मुझे इस बैंड के ऊपर डालना है। ओके, सो आई एम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। ये ऑप्शंस आता है आपके पास कैलिब्रेशन टाइप। ठीक है, तो डीएन वैल्यू से आइदर आपको रेडियंस कैलकुलेट करना होता है और एल्स आपको रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आता है। ठीक है, रेडियंस एंड रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, जो भी आपके पास डीएन वैल्यू रहेगा ये लैंडसेट पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लैंडसेट में जैसे मैंने वहां पे अपरेंट रिफ्लेक्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेंस ओनली। दैट प्रोसेस में आप जा सकते हो, नहीं तो आप रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन से भी ये प्रोसेस करें। सो रेडियोमेट्रिक इज अ काइंड ऑफ, ये भी एक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस है। ओके, बट क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ अ इजीएस्ट टूल। वो इंफ्रारेड और रेड बैंड, मतलब जो इंफ्रारेड रेड और विजुअल रेड जो बैंड होता है उसके ऊपर बेस करके वो क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन प्रोसेस एक एक्स्ट्रा टूल डेवलप किया है एनवी ने। तो कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स को डायरेक्टली रीड करता है सेंसर से एंड इट विल रन। बट ये क्या होता है, ये इन जनरल, यहाँ पे मैंने कोई सेंसर मेंशन नहीं किया है ना। या कोई भी सैटेलाइट के ऊपर आप कर सकते हो, उसका जो डीएन फाइल होगा, रॉ डेटा फाइल जो होता है उसको आपको इनपुट देके फिर ये रन करना पड़ता है। ये बैंड स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हर एक बैंड का स्पेसिफिक होता है। अगर मुझे ये लैंडसेट पे करना है तो लैंडसेट में मुझे पहले हर एक बैंड का रेडियंस कैलकुलेट करना है, नहीं तो रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद मुझे लेयर स्टैक करना है। और क्विक एटमॉस्फेयर करेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, एक बार से मैं फाइल दे रहा हूं, सारे बैंड एक साथ मेरा करेक्शन होके आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेम चीज है, बट इसमें जब आप रेडियंस और रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट करोगे इट इज अ बैंड स्पेसिफिकली इट विल गोइंग टू कैलकुलेट। और उस पे क्या होगा, आपको एक बार से सारे जो सैटेलाइट का जितना बैंड है उस पर कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस। रिजल्ट्स में डिफरेंसेस इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है, डिफरेंसेस इज सेम, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो आपका थोड़ा कम हो जाता है। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें मुझे हर एक बैंड को करने के बाद फिर बैंड को स्टैक करके फिर मेरा आउटपुट जनरेट होता है। उस पर मेरा क्या होगा कि सारे जो प्रोसेस है वो एक बार से ही अपलोड होकर आ जाता है। ये डिफरेंस, बट रिजल्ट इट विल गिव द सेम, जो बोथ आर एटमॉस्फेयर। हाँ, लेकिन फ्लश करेक्शन जो होगा उसका रिजल्ट सबका डिफरेंट है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कल वो करेंगे, वो हाइपरस्पेक्ट्रल पे करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए होता है। यहाँ पे भी शायद है, कल और एक चैप्टर हो उसमें करेंगे। एनीवे अभी यहाँ पे कोई नाम वाम देने के लिए नहीं बोला क्या? कैलडेट आउटपुट फाइल, ओके, नेम देने के लिए बोला है टोक्यो _WV2
अंडरस्कोर कैलिब्रेशन कैलिब्रेटेड, इसलिए इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। ओके, सो सिंपली क्लिक ऑन ओके। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बाद ही आप डार्क ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑर्थो रेक्टिफिकेशन करने जाओ। यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेज के ऊपर करना पड़ता है क्योंकि सिटी का एरिया होगा तो उसपे क्या होता है कि आपका डिले डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो शैडो एरिया जो होता है तो उसपे एरर्स आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के टाइम। तो इसीलिए पहले आपको एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने के बाद यू हैव टू डू द डार्क पिक्सल सब्सट्रैक्शंस। ये हम लोग हिली रीजन पे बहुत करते हैं। हिली रीजन पे ज्यादातर हम लोग ऑर्थो रेक्टिफिकेशन ज्यादा यूज करते हैं। वो अगर हम लोग लैंडसेट भी यूज करते हैं तभी वो हम लोग ऑर्थो रेक्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्लेन एरिया होगा तो उस पर इतना यूज नहीं करते, लेकिन हाई रेजोल्यूशन इमेज होगा, सिटी एरिया होगा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस। ओके, तो इसके लिए अभी देखिए, अभी जो प्रोसेस हम लोग करेंगे दैट इज डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन टेक्निक। ये क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। So at this point, the worldview to Tokyo, Japan, you just see here has been radiometrically calibrated. Okay, जो हम लोगों ने already कर लिया। Now, but we still need two components, okay, compensate for the atmospheric scattering. Okay, इसमें atmospheric scattering का अभी भी problem है। So dark object subtractions is one method that can be used to correct the pixel value, okay, to the apparent reflectance. इसमें क्या होगा, assuming the dark object, okay, reflects on a light, any value greater than 0, okay, must results from the atmospheric scattering. The scattering removed by the subtraction value from every pixels in the band, and the simple techniques effective corrections in the multispectral data. We have defined the dark objects, creating the region of interest, okay, for the baseline spectrum and reminding of the other scenes. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन करते हैं, जहां जहां शैडो एरिया है, शैडो एरिया पे बहुत ज्यादा वैल्यूज का डिफरेंसेस आता है। तो यूजुअली वो शैडो एरिया का वैल्यू इट शुड कम नियर टू 0 2 और -1 के आसपास आ जाना चाहिए, तभी इट विल कमिंग अ गुड रिजल्ट्स ओवर आवर ऑब्जेक्टिफाइड डेटा। ठीक है, तो वो हम लोग अभी उसी को ही ट्राई करें, डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन करके वी प्रिपेयर आवर डेटा फॉर आरसीपी ऑर्थो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो कैसे करेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं। तो इस पे अभी हम लोग आरओआई टूल जनरेट करेंगे। तो आरओआई टूल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे आरओआई टूल तो दिया हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बोला है कि कुछ शैडो जो एरिया है वहां से हम लोगों को कुछ सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन करने के लिए शैडो एरिया का मुझे डार्क ऑब्जेक्ट का सैंपल्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे कुछ डार्क ऑब्जेक्ट का बोला है, तो एक पिक्सल वैल्यू दिया है दैट इज 4702112 एंटर कीजिए। ये जगह ओके। सो यू हैव शैडो हियर, यू हैव शैडो हियर। नाउ I can create a ROI over this particular place. Okay, so मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ। Actually ऐसे करना था, ठीक है। ओके, तो इसको सेव करना पड़ेगा। मैं कुछ डाल दिया क्या, एक मिनट। ओके, सो ये जो फाइल है इसको आपको सेव करना पड़ेगा एज ए नेम। आप और भी कलेक्ट कर सकते हो, मैंने एक ही कलेक्ट किया। ठीक है, यू हैव टू गिव सम नेम, लाइक यहाँ पे कुछ नेम देने के लिए बोला है, डार्क पिक्सल सपोज। ओके, सो नाउ यू आर रेडी विद द डार्क पिक्सल्स। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा जो आपका शैडो एरिया है उससे बहुत सारा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, करके आपको ये
डार्क पिक्सेल्स अभी जो होगा यहाँ पे एक टूल है दैट इज कॉल्ड डार्क पिक्सेल्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। ये मेथड कहाँ से आएगा? डार्क सब्सट्रैक्शन पैरामीटर यहाँ पे कहीं से आता है फाइल के अंदर। डार्क सब्सट्रैक्शन लिखते टाइप करके आता है कि नहीं? डार्क से आता है, यस आ गया डार्क सब्सट्रैक्शन। ओके, सो यू हैव टू गिव इनपुट योर कैलिब्रेटेड फाइल, जो कि फाइल आपने कैलिब्रेशन किया था। ओके, सो वो फाइल आपको यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आपका वो जो होगा दैट इज योर रीजन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आरओआई मैंने जो जनरेट किया उसको मुझे रीजन ऑफ इंटरेस्ट को उसको देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नाम देना है, दैट इज इसका भी एक नाम देना था। इनपुट फाइल क्या होगा? ओके, दिस इज द नेम। मैं कुछ नाम देता हूँ यहाँ पे, तो wv2 cal ds calibrated dark subtractions. Okay, you should give name like this. Okay, so click on शो गड़बड़ कर दो। IUI जो क्रिएट किया है दैट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉपर्ली। इसको रिमूव करते हैं, ऐसे भी रिमूव करते हैं। तो ठीक है, ओके, और एक बार जनरेट करते हैं। अच्छा, अच्छा ये नहीं किया मैंने, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या मतलब गलती किया क्या? उसको सेव नहीं किया, मतलब यू हैव टू राइट क्लिक एंड यू हैव टू कीप सेव, जो भी जितना भी आपको लेना है एक्सेप्ट रेक्टेंगल, तो आपको उस पिक्सेल्स का वो कलेक्ट आउट करेगा। अभी जब मैं यहाँ पे इसको डाला था आरओआई तो रेडी है, लेकिन आरओआई के अंदर कुछ भी नहीं था पिक्सल वैल्यू, सो वो सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। एनीवे अभी देखते हैं होता है कि नहीं। इस नाम को ही थोड़ा सा 2 देके करते हैं, तो 2 cal okay, now let's try with this calibrated data. Okay, region of interest. Okay, यहाँ पे अच्छा वही नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली वो नाम होना चाहिए। Okay, अभी रन होगा। So this will be my calibrated DS value. अब इसको मुझे इनपुट देना पड़ेगा ऑर्थो रेक्टिफिकेशन का जो आएगा, उस पे मेरा ये इनपुट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कहाँ से आएगा? सो यू कैन सर्च इट फ्रॉम हियर। ये जो है दैट इज टेक्निक इज आरपीसी ऑर्थो रेक्टिफिकेशन, आरपीसी टाइप करते हैं। RCB rectification, I think workflow, yes. Okay.
So input file it is taking by default. Okay, means यहाँ पे खुला हुआ है, that's why it's coming. But anyway, you can change it also. From यहाँ पे change करना पड़ेगा. That is Tokyo जो आपका DS file है. So that you have to give as input. DAP subtraction file. Okay. और जो dem file है, that also you have under this Tokyo dem. That particular dem you have to select. तो यहाँ पे जाके ये dem. Okay. Tokyo dat dem. Yeah, yes. Okay, so this will be your input. Okay, so now you can go for the next. So यहाँ पे अगर आपको पास लोकल GCPs है, so using that particular GCP यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, तो आपका जो करेक्शन प्रोसेस है उसको और भी बेटर कर सकते हो. जैसे ये प्रोसेस हम लोग कल या परसों जब हम लोग रडार पे करेंगे ना, तो रडार पे क्या होता है, कौन सा प्रोसेस था, इंटरफेरोमेट्री का. जो हम लोग इंटरफेरोमेट्री करते हैं, तो इंटरफेरोग्राम से भी हम लोग डेम जनरेट करते हैं. ठीक है, तो डेम जनरेट करने के लिए भी हम लोग ऐसे GCPs को कलेक्ट करते हैं. तो जो डेम का जो एक्यूरेसी है, सो दैट इट विल बी गिविंग आर मोर बेटर. अगर मेरे पास कोई रेफरेंसेस डेटा है, दिस इज कंपलसरी, बट अगर है सो यू कैन यूज दोस GCPs. ओके, सो नाउ यू कैन गो to this advance. You can check जिसका जो out pixels आएगा, there is 2 meter, it's fine. Okay, so that will be given. Statistics आप देख लीजिए. So this will be the statistics which we have here. And finally you can go to the export. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नाम देके you can start the exporting. तो export the authentication reports is not required. You just simply click on finish. So इसमें एक्चुअली यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड बाय द इमेज चेंजेस. कुछ वैल्यूज का चेंजेस होता है जो डार्क एरिया रहता है. सो डार्क एरिया पे एक्चुअली ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, यूजुअली वील गेट एक्स वाई एंड जेड वैल्यू ओवर द पिक्सेल्स. एंड उसके बाद वो वैल्यू तभी भी एक्यूरेट होता है जब हम लोग डार्क सबसेशन कर देते हैं. तभी हम लोग जो रिपोर्ट्स हम लोगों के पास जनरेट होता है, दैट विल बी एक्यूरेट ओवर दैट. जो शैडो एरिया है, मैंने बोला था कि शैडो एरिया पे आपका जो वैल्यू है इट शुड कम टू 0 to 1. जो अगर ऑब्जर्वेशन अगर नहीं करोगे तो वहां पे देखना 32 35 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा. सो दैट यू आर एक्चुअली करेक्टिंग यूजिंग दिस टेक्निक. तो ये हम लोग जब हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज यूज करते हैं तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं. हाई रेजोल्यूशन में जब हम लोग ऑर्थो जनरेट करते हैं तभी हम लोग ये प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. ओके, सो वी विल क्लोज अप टू